आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मॉर्निंग में। इस संडे की आज हम 2 हफ्तों के बाद मिल रहे हैं और हमारे लिए बड़ा ही खुशी का विषय है कि आज हमारे साथ इंडिया के सबसे प्रोमिनेंट इनकम टैक्स में जो टैक्स गुरु हैं डॉक्टर गिरीश आहूजा जी, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज हमारा सबसे जो बर्निंग टॉपिक है टीडीएस प्रोविजन जो नए आए हैं उसके ऊपर वो हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें बताएंगे कि उनकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को हमने कैसे सॉल्व करना है और उसको कैसे कॉप अप करना है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। इससे पहले कि हम लोग प्रोग्राम की फॉर्मल शुरुआत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री रंजीत शर्मा जी को, जो कि प्रेसिडेंट हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन अमृतसर के, कि वो हमारी जो एसोसिएटेड मेंबरशिप कंसर्न्स मेंबरशिप एसोसिएशंस हैं वो उनके बारे में रोशनी डालें। रंजीत शर्मा जी, यू कैन गो लाइव। रंजीत जी, आप हमारे साथ हैं? सीखे थे सही, अभी तो थे रंजीत शर्मा जी। है नजर तो आ रहे हैं। रंजीत अनम्यूट कर लो आपको, अपने आप को। मैं देखता हूँ सर। रंजीत जी अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, मैंने कर लिया जी, सॉरी। और लिंक की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। कोई बात नहीं सर। जी सर शुरू करें? जी प्लीज सर, प्लीज। सर, it is indeed a matter of great pleasure in announcing to the participant that Punjab Tax Bar Association Ludhiana, under the able guidance of President Shri Balkishan Gupta ji and Secretary General Shri B.R. Kaushal ji, has provided a platform for this dissemination of professional knowledge in the shape of webinars through eminent speakers. I, Ranjeev Sharma, Advocate President of GSTPA, on behalf of the Punjab Tax Bar Association and GSTPA, thanks all the professional bar associations and their office bearers of Punjab and Haryana who have associated themselves with the PTBA to make these webinars a success story. I especially thanks all the office bearers and members of Haryana Tax Bar Association, HP Tax Bar Association Shimla, National Association of Professional Tax Professional Punjab, National Association of Tax Professional Haryana, District Taxation Bar Association Ludhiana, Taxation Bar Association Ludhiana, Taxation Bar Association Moga, District Tax Bar Association Mohali, Taxation Bar Association Jalandhar, District Tax Bar Association Bathinda, Patiala Tax Bar Association Patiala, Pathan Bar Association Pathankot, Hoshiarpur Tax Bar Association Hoshiarpur, Mansa Tax Bar Association Mansa, District Tax Bar Association Amritsar, Income Tax Practitioner Association Amritsar, District Tax Bar Association Sangrur, District Tax Bar Association Fatehgarh Sahib, GST Practitioner Association Amritsar, Sangrur Tax Bar Association Sangrur, District Taxation Bar Association Faridabad, the District Taxation Bar Association Panchkula, District Tax Bar Association Ambala, District Taxation Bar Association Karnal, District Taxation Association Jind, District Taxation Bar Association Sonipat, District Taxation Bar Association Panipat, District Taxation Bar Association Sirsa, District Taxation Bar Association Hisar, District Taxation Bar Association Bhiwani, District Taxation Bar Association Fatehbad, District Taxation Bar Association Rewari, GST Bar Association Rohtak, District Taxation Bar Association Jamnanagar, District Taxation Bar Association Kurukshetra, District Tax Bar Association Jammu, Tax Bar Association Faridkot. All these associations are and their office bearers association have with their wholehearted support made this possible. I hope that with the able guidance of all the members and the associations, we would be able to achieve much greater heights in the times to come. Thank you. Thank you so much, Sharma ji, for your introduction. I'll switch to Shri Sachin Sharma ji, who is the president of Jammu Tax Bar Association, to please introduce today's guest, though he doesn't need any formal introduction.
He's a well-renowned personality across the country. But just a formal word of introduction. Shri Sachin Sharma ji, President of Tax Bar Association, Jammu. Sachin ji. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. And welcome on board to today's session. Today, we have with us not only a legend, but a live encyclopedia in the field of direct tax laws. I would like to introduce today's presenter, Dr. Girish Ahuja. Though his credibility and knowledge can't be described in words, but I would definitely highlight some of his achievements he has gained during his journey as a practicing chartered accountant. Dr. Girish Ahuja is an alumni of Shri Ram College of Commerce, Delhi University, and did his chartered accountancy in the year 1970 and was a rank holder both in the intermediate and final examination of the Institute of Chartered Accountants of India. He is also a PhD from Faculty of Management Studies, Delhi University in the year 2009. Since he was practicing as a chartered accountancy, he has gained number of achievements and has been nominated by the Government of India and number of various private companies as the directors and members of these bodies. The Government of India has also inducted him as a member of the task force for redrafting of the Income Tax Act and new income tax law and report thereto, which was submitted to the Finance Minister in 18th of August 2019. Apart from number of being as an independent director to the board of Ruchi Soya Industries, to the State Bank of India, and as per the approval of Supreme Court, to the board of directors of unit. सर गुप्ता जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. He has also been nominated as a member of high-powered committee constituted by the Government of India under the chairmanship of Justice A.P. Shah, Chairman Law Commission, to look into the issue of applicability of MAT provisions in case of foreign companies and FIIs, any other issue relating to the applicability of the direct tax provisions which may be referred to it by the government and CBDT from time to time. Not only this, he has an achievement of writing the books of 25 books of direct taxation, both for the professionals as well as for the students as well, with lot of commentary in it. He has also delivered more than 3,200 lectures on various topics of direct taxes and guided all these professionals from time to time. He has also been the president of SRCC Alumni Association for over 20 years. Sir, we all welcome you to this webinar and eager to hear you on today's topic on TDS and TCS provision under the Income Tax Act. We all of us thank Dr. Girish Ahuja for being the part of this webinar, and we are sure that we'll all learn from Dr. Girish Ahuja with regard to the various provisions regarding to TDS TCS as incorporated in the latest Income Tax Act. Now I hand over this session to the moderator, Mr. Sandeep Goyal, for further. थैंक यू सो मच सचिन जी. इससे पहले कि मैं श्री BR कौशल जी के पास जाऊं, जिन्होंने कि आज का विषय हमारा जो है उसकी एक इंट्रोडक्शन देनी है, उससे पहले आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ श्री संजय शर्मा जी, who had been the president of the Asia's largest sales tax bar association on number of occasions. We welcome you, Sanjay Sharma ji. He is always there with us to encourage us in this webinar dissemination. Now I'll go to BR Kaushal ji. Please, sir, आप आज का हमारा विषय जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे. Please, section 194Q 206C1H and section 45(4). And I will request that let us be brief on this issue so that we can give the most of time to Dr. Saab. At the very outset, I am really thankful to the organizer for giving this opportunity to introduce today's subject. Today's subject is new provision of TDS under section 194Q and 206C1H and section 45(4) of the Income Tax Act. All these sections of TDS is generally called TDS. So under these section 260C1H was introduced by the Finance Act inserted 2000
with effect from 1/10/2020, and Section 2 and Section 194 was introduced in the statute book by the Finance Act 2021 with effect from 1/4/21. Both the provision has been introduced with a view to incorporate all the transaction recorded in Section 26A. Both sections are applicable where the turnover of the person is exceeding rupees 10 crore in the preceding years. Person is defined under Section 231 of the Act. There, the applicability of the section is on account of, say, under Section 260C, on receipt of payment from the buyer. It may be advance, it may be on account of sale consideration. Any transaction between 1st April to 30th September is not liable for the TCS, and thereafter, if the turnover, if the receipt exceeds from 50 lakh, then he is liable to deduct TCS at the rate of 0.1. And the other provision which has been incorporated from 1/4/21 is TDS under Section 194Q. That is on account of buying of goods from any seller. It is also if the purchase amount is more than 50 lakh from one seller. So the rate of TDS is 10, you can say 10 paisa. If the pen is not available with the seller, then it will be then the rate of tax will be 5%. This all will be discussed by the learned speaker, Dr. Ahuja ji. The other provision which is likely to be discussed is Section 45(4) of the Income Tax Act. That is reconstitution of the reconstitution as well as specified person, specified entity is defined under Section 9B of the Income Tax Act. That is on receipt of income from capital assets or stock and trade by the specified person from a specified entity, which is defined under Section 9B of the Act. This all will be deliberated by the learned speaker, Dr. Girish Ahuja ji. Now I hand over the mic to Shri Sandeep Goel ji. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद कौशल सर। अभी और बिल्कुल भी एक सेकंड भी वेस्ट करे बगैर मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर आहूजा जी से कि वो हमें इन प्रोविजंस के ऊपर रोशनी डालें और हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर गिरीश आहूजा जी, प्लीज। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। प्रेसिडेंट ऑफ द पंजाब टैक्स बार एसोसिएशन बालकृष्ण गुप्ता जी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पंजाब टैक्स बार एसोसिएशन भगत राम कौशल जी, हरियाणा टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ पोस्ट टैक्स बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट RN यादव जी, हिमाचल प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट राकेश शर्मा जी, जम्मू एंड कश्मीर टैक्स बार एसोसिएशन, नाउ बिकॉज़ कश्मीर इज अ सेपरेट पार्ट नाउ, जम्मू कश्मीर एसोसिएशन सचिन शर्मा जी, होस्ट ऑफ द टुडेज प्रोग्राम ऑफ कोर्स संदीप गोयल जी, को-होस्ट राजेश मल्होत्रा जी, रुपेंद्र कंसल जी, संदीप गोयल, यहाँ भी दो गोयल्स हैं, ऑफ कोर्स GST एसोसिएशन ऑफ ऑफिसर्स प्रेसिडेंट रंजीत शर्मा जी, and above all
from Delhi Tax Bar Association, my very good friend, and who introduced me to the advocates right in the beginning. Beside, of course, Kaushal ji, Sanjay Sharma ji, ladies and gentlemen. Well, friends, regarding 194Q 206C1H, आपको पता है, जैसे कौशल जी ने कहा, फाइनेक्स एक्ट 20 ने टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में एक 2061H सेक्शन डाला. द पर्पस वाज मॉनिटरिंग, नथिंग एल्स, टू कीप ए वॉच. क्या डाला उसमें? लिखा था एवरी सेलर ऑफ द गुड्स. वहां सेलर ने टैक्स कलेक्ट करना था फॉर मेकिंग सेल to the buyer of the goods who is resident in India, of course not seller who exporting the goods, or not covered those who are under other section. अगर वो seller of goods है और वो अगर माल buyer को देता है और वो value exceed 50 lakh करता है in a year, then you are supposed to collect tax not at the time of sale, at the time of amount received exceeding rupees 50 lakh in the previous year. वो जो 206C1H था कौशल जी, उस सेल से कनेक्टेड ये था कि सेल किसी भी साल हो, हमें सेल का मतलब नहीं है. प्रीवियस ईयर में रिसीट 50 से ऊपर होगी तो यू विल हैव टू कलेक्ट टीसीएस एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख. 50 लाख तक नहीं काटना था, 50 के ऊपर था. जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि ये 1 अक्टूबर 20 से आया तो 1 अक्टूबर 20 से था, लेकिन जो अमाउंट कैलकुलेट करना है वो 1 अप्रैल 20 से करना था. तो अमाउंट रिसीव्ड 1 अप्रैल 20 से करना. तो अगर कौशल जी सितंबर 20 तक अगर आपके 50 लाख से ऊपर आ चुका था तो भी आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना था, नहीं करना. लेकिन अगर आपका सितंबर 30 तक 40 लाख आया था तो आपको 1 अक्टूबर से कलेक्ट नहीं करना था जब तक 10 लाख और ना आ जाए. लेकिन अगर आप 50 लाख ऑलरेडी सितंबर तक रिसीव कर चुके हैं तो 1 अक्टूबर से 1 रुपए के ऊपर भी टीसीएस कलेक्ट करना था. लेकिन सितंबर तक अगर 50 से कम था, सो लॉन्ग एज यू रीच अप टू 50, कोई टीसीएस. लेकिन कैलकुलेट कब किया? अप्रैल से. लेकिन काटना कब से? अक्टूबर से. तो 50 लाख कहां से देखना था? व्हाट यू कॉल अप्रैल से. लेकिन अगर 30 सितंबर से पहले ही 50 लाख हो चुका, कुछ नहीं करना था. लेकिन 1 अक्टूबर से काटना कलेक्ट करना शुरू करना. लेकिन अगर 30 सितंबर तक 30 लाख था तो 20 लाख तक इंतजार करना पड़ेगा अमाउंट रिसीव. सेल का कोई करेक्शन नहीं, अमाउंट रिसीव. और 50 पूरे ही होते ही आपको कलेक्ट करना है. ये जब लॉ आया तो सभी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर चेंज कर दिए, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी टीसीएस किस टाइम पे कलेक्ट करना है. आपको बिल बनाते ही कलेक्ट करना है ऐसा तो था नहीं. वो कलेक्ट करना था जब पेमेंट आए. लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों ने कहा हमारे जितने भी बायर है वो 50 लाख से ऊपर है और उसकी कीमत 50 से ऊपर आई जाएगी. तो उन्होंने क्या किया? सॉफ्टवेयर में ही चेंज करके हर बिल में कलेक्ट करना शुरू कर दिया. हर बिल बनाया और उसमें टीसीएस कलेक्ट का लिख दिया 0.1%. हालांकि करेक्ट नहीं था, क्योंकि हो सकता है अगले साल 50 लाख से कम पेमेंट रिसीव हो तो फिर आपने बिल बना दिया है. लेकिन उनको तो ये था कि 50 लाख से ऊपर तो हर साल आई जानी है, तो इसलिए हम कलेक्ट करने के लिए सेपरेट ना करें, बिल में ही कलेक्ट कर ले और बिल में डेबिट कर दिए. कईयों ने ऐसा नहीं किया. कईयों ने क्या, जब पेमेंट आई उस वक्त दो चीजें की. या तो डेबिट नोट इशू किया 0.1% का और उनसे पेमेंट मांगी, या जो पेमेंट आई उसमें 0.1% निकालकर उसके ऊपर बाकी उसको क्रेडिट कर दिया और वो पैसे जमा कर. ये सिस्टम हुआ था, लेकिन कितना शॉर्ट लिव्ड सिस्टम हुआ कि लास्ट ईयर ये किया और इस साल आपने बर्डन शिफ्ट कर दिया फ्रॉम सेलर टू द बायर. मैं करूंगा उसका दोबारा आऊंगा 2061H में और कई चीजें बताऊंगा भी. लेकिन आपको मालूम होगा 2061H पेमेंट के कलेक्शन के ऊपर था. क्योंकि कलेक्शन के ऊपर था
तो कई लोगों ने मुझे पूछा सर जीएसटी का क्या, क्योंकि जीएसटी पार्ट होगा कि नहीं होगा। सर कलेक्शन के टाइम में जीएसटी नहीं देखना, जो अमाउंट कलेक्ट हुआ उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होगा नो डाउट, उसके 50 लाख के ऊपर आपने टीसीएस कलेक्ट करना था, क्योंकि हमने बिल पे जो मर्जी लिखा हो, लेकिन यहाँ तो कलेक्शन के ऊपर है, तो जीएसटी हमें क्या पता कितना लेस करना है। हो सकता है बिल में 12% जीएसटी वाला भी हो, 18 वाला भी हो, 5 वाला भी हो, तो हमको क्या पता कितना कलेक्ट करना। तो उन्होंने कहा क्लियर कर दिया था, एक सर्कुलर डालकर, वो सर्कुलर 2020 में लाया थे 17/2020 सर्कुलर, और कह दिया था जीएसटी जो होगा उसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जो भी अमाउंट रिसीव हो वो जीएसटी इंक्लूसिव ही होगा, आप उसमें टीसीएस कलेक्ट करेंगे। ये पहली बात है। और वहां पर भी बताया था कि देखिए अगर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हैं या कमोडिटीज हैं विच आर सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो शेयर सिक्योरिटीज पे कोई टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, हालांकि शेयर एंड सिक्योरिटी गुड्स की डेफिनेशन में आ जाती। उन्होंने ये भी कहा था इलेक्ट्रिसिटी है, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है और सर्टिफिकेट है या एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट है, वो पर भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। हालांकि वो इलेक्ट्रिसिटी को गुड्स मान लिया गया था लेकिन कलेक्ट नहीं करना। ये भी बोला गया कि 206C में कहीं और कलेक्शन होती है, किसी और सेक्शन में, जैसे 206C1 है, स्क्रैप के ऊपर कलेक्शन हो गई, तो फिर आपको 206C1H पे नहीं करना। और ये भी बोला गया किसी पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस कटता है तो भी आपको ये कलेक्ट नहीं करना। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं तो भी कलेक्ट नहीं करना। ये चीजें क्लैरिफिकेशन कर दी। थोड़े दिन तो कलेक्शन हुई। अब देखिए फाइनेंस एक्ट 21 ने एक 194Q सेक्शन कर दिया जो रिलेटिंग टू टीडीएस है। वो टीडीएस है, टीसीएस नहीं है। टीडीएस तो आपको पता है जो कटेगा वो बायर होगा। क्या कहता है? एवरी पर्सन, जैसे पर्सन की डेफिनेशन बताई कौशल जी ने, तो वहां एवरी पर्सन लिखा, आगे लिखा बीइंग ए बायर। कौशल जी, एवरी पर्सन बीइंग ए बायर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू ए रेजिडेंट हेयरइनआफ्टर कॉल्ड सेलर। क्या किया? एक बायर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एनी सम टू ए रेजिडेंट, ये रेजिडेंट है, who is a seller of the sale of the value of the sale exceeding 50 lakh in a previous year। देखिए यहाँ वैल्यू ऑफ सेल प्रीवियस ईयर की देखनी पड़ेगी, वो 50 लाख से ऊपर होगी। वहां वैल्यू ऑफ सेल की कोई मीनिंग नहीं था, यहाँ तो पेमेंट रिसीव। वैल्यू ऑफ exceed ₹50 lakh shall be under an obligation to deduct tax at the time of credit of the bill, credit of the value of the goods, or at the time of payment, whichever is earlier। अब देखिए यहां फर्क पड़ गया। यहां आपको पेमेंट बेसिस पे कलेक्ट नहीं करना, यहां कलेक्ट करना है एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स। किसके ऊपर? टू द अकाउंट ऑफ द असेसी और द सेलर, वैल्यू ऑफ गुड्स और पेमेंट whichever is earlier। उसमें जो भी अर्लियर है उस पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। रेट वही है एट द रेट ऑफ 0.1%। लेकिन ये जरूर कहा गया 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर साल का परचेज ऐसे होनी चाहिए, 50 लाख से। अब जरा ध्यान से रखना, स्लिप ऑफ टंग में कौशल जी ने डेट गलत बता दी, लेकिन को पता था ये डेट 1/7/2021 की है, 1/4/2021। तो स्लिप ऑफ टंग हो जाती है कि टर्नओवर आपने 1 अप्रैल से देखना है, लेकिन टीडीएस तो 1/7/2021 से डिडक्ट करना है। अब ये आपको करना है। अब इसके लिए भी एक सर्कुलर आ गया, क्योंकि गाइडलाइंस थी, सर्कुलर आ गया, सर्कुलर 13/2021 डेटेड 30 जून 2021। सरकार बड़ी तेज है, 1 जुलाई से काटना है, 30 जून तक सारा बता दिया किस तरीके से काटना है। बड़े लोगों ने मुझे टेलीफोन किया, सर कई चीजें तो क्लैरिटी नहीं है, क्या होगा? मैंने कहा इंतजार तो कर लो। वो सर 1 जुलाई आ रहा है। और 1 जुलाई को तो नहीं काटना है सर, जमा तो आपको 7 अगस्त को ही कराना है ना पहली बार।
तो 1 महीना है ना, क्यों घबरा रहे हो? लेकिन बात ये है ना, जब फॉल्ट डिपार्टमेंट का हो तो हम हमेशा कहते हैं, हे देखो क्या सर ये बनाया इन्होंने, ये जो इन्फोसिस ने जो नया आपका वेब का वो जो पोर्टल जो चला ही नहीं। सर हर चीज में हिच होती है, हर चीज में प्रॉब्लम आती है और वो ठीक हो जाती है ग्रेजुअली। लेकिन हम इमीडिएटली हाइपर होकर शोर मचाते हैं। मैंने कहा था हाइपर होने की जरूरत नहीं है, 1 जुलाई से पहले पहले आपको गाइडलाइंस आ जाएगी, सर्कुलर आ जाएगी, लेकिन कटना 1 जुलाई से। बताता उसमें यह भी लिखा है कि बायर कौन होता है। वहां तो सेलर की डेफिनेशन दे रखी थी, या बायर की डेफिनेशन प्रोवाइजो में दे रखी है। कहता है जी बायर मीन्स ए पर्सन। प्लीज नोट सर, ये ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड जरूरी है। बायर मीन्स ए पर्सन whose total sale, total receipt, total gross receipt और turnover आगे वर्ड क्या है सर? ऑफ द बिजनेस। या वर्ड बिजनेस है, टर्नओवर ऑफ द गुड्स नहीं है, टर्नओवर ऑफ द बिजनेस। तो आप ऐसा भी बिजनेस कर रहे हैं जिसमें गुड्स भी बेचते हैं और सर्विस भी रेंडर करते हैं। हमने जब टर्नओवर देखना है, सिर्फ गुड्स का नहीं देखना, टर्नओवर पूरे बिजनेस का देखना है। हाँ, बिजनेस का देखना है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का नहीं देखना अगर उसमें क्रेडिट है, या अदर सोर्सेज का नहीं देखना, कैपिटल गेन नहीं देखना, लेकिन टर्नओवर ऑफ द बिजनेस देखना है। वो मेरा टर्नओवर ऑफ द बिजनेस है exceeds ₹10 crore in the preceding financial year, immediately preceding the financial year in which you are liable to deduct the tax at source। मेरा पिछले साल, क्योंकि हमने 1 जुलाई 2021 से काटना था, तो हम कह रहे हैं कि पिछले साल 2021 में आपकी ग्रॉस रिसीट, ग्रॉस सेल और ग्रॉस टर्नओवर शुड बी ऑफ विच ऑफ द बिजनेस। प्लीज नो, जो भी बिजनेस की इनकम आएगी सारी बिजनेस ग्रॉस टर्नओवर माना जाए, रिसीट मानी जाए। मैंने ये नहीं कहा गुड्स का टर्न, इवन सर्विसेज है या कोई ऐसी इनकम है जो बिजनेस में टैक्स होने वाली है, वो भी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, वो ग्रॉस रिसीट में आ जाए एक्सीड 10 करोड़। तो आपको टीडीएस काटना है फ्रॉम 1 जुलाई। देखिए रुकिए, यहां पर भी वही प्रॉब्लम थी, 50 लाख का गुड्स होना चाहिए। तो 50 लाख को गुड्स कब से देखना है? 1 अप्रैल से देखना है। लेकिन टीडीएस कब काटना है? 1 जुलाई से काटना है। लेकिन टर्नओवर या जो परचेज है वो 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अब पॉइंट सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। सपोज कौशल जी 30 जून तक आपको या पेमेंट आ गई है या बिल आ चुका है, उसको फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस नहीं देखना है। जो 30 जून तक आइदर पेमेंट इज रिसीव्ड और बिल इज रेज्ड, उस केस में बिल इज रिसीव, बिल आपने माल खरीदा है, उसमें कोई नहीं देखना है उस ट्रांजैक्शन की। सपोज पेमेंट ऑलरेडी आ चुकी है कौशल जी, लेकिन उसका बिल बाद में बना 30 जून के बाद, तो भी नहीं कर, तो उस अमाउंट पे नहीं टीडीएस काटना। सपोज आपके पास ऑलरेडी पेमेंट 40 लाख आ गई या 50 लाख आ गई, जो भी आ, लेकिन बिल बाद में आया, तो उस बिल पे टीडीएस नहीं करना। दूसरी बात, आपको बिल आ गया है पहले और पेमेंट आपने बाद में करी, तो भी वो टीडीएस नहीं कटना, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। लेकिन रुकिए, मैं बार बार कहता हूं रुकिए, कि जब आप टोटल टर्नओवर देखेंगे वो 1 अप्रैल से देखेंगे, 30 जून से नहीं, 1 अप्रैल से देखेंगे। और फिर अगर टर्नओवर आपका 1 अप्रैल तक 50 से ऊपर हो गया है, वैल्यू ऑफ द गुड्स और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर 50 से ऊपर हो गई, तो आप 1 जुलाई से टीडीएस काटना शुरू कर देंगे। जो 30 जून से पहले आया उसका तो करना ही नहीं है। उसके बारे में तो एक और क्लैरिटी दे दी कि वो बिल की पेमेंट बाद में भी आई, उस पर नहीं करना, या पेमेंट पहले आ गई है और बाद में बिल आया, उसका भी नहीं करना। लेकिन जो 1 जुलाई को देखना है वो अप्रैल का सारा देख लेना है, क्या पेमेंट आई या क्या टर्नओवर आया, विच एवर अर्लियर। उस केस में जो बढ़ गया
उसके बाद 1 जुलाई से आपको TDS 0.1% कलेक्ट करना है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स credited your account or at the time of payment, whichever is earlier. Sir, whichever is earlier है. एडवांस पेमेंट पे भी TDS होगा क्योंकि whichever is earlier हो गया. तो पेमेंट एडवांस करी तो भी, बिल आ गया तो भी, अगर आपका 1 अप्रैल से मिला अगर शुरू हो गया 50 से ऊपर तो आपको TDS डिडक्ट करना है. ये उन्होंने बोला. फिर उन्होंने एक सबसेक्शन 2 डाला कि अगर आपने वो बिल या एनीथिंग यू हैव क्रेडिटेड ए सस्पेंस अकाउंट और एनी अदर अकाउंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, उसका मतलब ये नहीं है कि TDS नहीं कटेगा. आपने पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, आपने सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट कर दिया या आपने एनी अदर अकाउंट में व्हाटएवर नेम कॉल्ड में कर दिया तो भी TDS कटेगा. फिर उसने कहा गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे देगी. वो गाइडलाइंस तो आ गई, सर्कुलर नंबर 13, और ये भी लिखा जिसपे TDS कट रहा है किसी और सेक्शन में, उस पे TDS यहाँ नहीं कटेगा. और एक और लिखा अगर कोई TCS कलेक्ट हो गया है अदर देन 2061H, अदर देन दैट, तो भी आपको यहाँ पर TDS नहीं काटना. जैसे स्क्रैप आपने खरीदा और 50 लाख से ऊपर का स्क्रैप, आपने टिम्बर खरीदी, आपने टबैको प्रोडक्ट खरीदा, आपने वो जो है जो उसमें 2061H लगता है, क्वेरी माइनिंग क्वेरी का कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसमें TCS कलेक्ट हो जाता है 2061 में. अगर वहां कलेक्ट हो गया है तो इसके अंदर TDS नहीं कटेगा. ये भी लिख दिया है. अगर किसी, लेकिन 2061H में है तो उन्होंने कहा कि यहाँ होगा, प्रेफरेबली यहाँ होगा. वो क्लैरिटी कुछ करी है, वो बाद में. अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो अब मैं आपको कॉम्प्लिकेट करने जा रहा हूं चीजों. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए. होस्ट साहब अगर है संदीप जी तो पूछ सकते हैं जो क्वेश्चन आए, क्योंकि जो क्वेश्चन साथ साथ पूछ लिए जाए वो ज्यादा समझ में आ जाते हैं, लास्ट में समझ में कम. सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आवाज नहीं आई से अब आपकी, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ूं. सर एक सेकंड. नहीं है सर क्वेश्चन. संदीप जी बोलिए. जी आपका इको हो रहा है सर जरा. हाँ जी, एक हो रहा है जी, आपका इको हो रहा है, कोई और टेकअप कर ले. अब ठीक है सर, अब ठीक है ना? और क्योंकि आपने 2 जगह लॉग इन किया हुआ है, आपकी 2 जगह शक्लें नजर आ रही हैं सर. 2 जगह लॉग इन होगा. जी. हाँ जी बोलिए सर क्वेश्चंस आए हुए हैं. हाँ बोलिए. अशोक सिंगला जी का आया हुआ है. Where a transaction is covered by both the provisions TDS under section 194Q and TCS under section 206C1H, who shall be liable? इंतजार कीजिए और फिर मैं सर्कुलर के बारे में भी बताऊंगा. थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी मैं आगे बढ़ना है, बताऊंगा सर, बताऊंगा जो आगे. सर आगे सुमीर गुप्ता जी का क्वेश्चन है. TCS charged on bill and duly deposited, but payment received in subsequent year. Whether we can take the plea that TCS on amount received in subsequent year is due. यही तो गलत है, यही तो उन्होंने गलत किया कि भैया जब तुमने TCS आप कलेक्ट करे जा रहे हैं सेल पे, वो सेल पे तो है ही नहीं. अगले साल रिसीट अगर 50 लाख से कम है तो आपने क्यों कर दिया? वो सर आपने उन्हें कहा कर दिया तो क्या हुआ, वो क्रेडिट ले लेंगे, लेकिन पेमेंट 50 लाख से कम आई है इसका. ये तो गलत था. उन्होंने कहा जी हमारे तो सारे बायर 50 से ऊपर वाले पेमेंट आएगी इसलिए कर दिया, अदरवाइज करना नहीं चाहिए था. अरे जो एक्स्ट्रा काम कर दिया तो गवर्नमेंट को क्या नुकसान है? गवर्नमेंट को तो पैसे आ गए ना. लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, आपने पिछले साल कलेक्ट किया और अगले साल पेमेंट आई तो दिक्कत आई. आपको पेमेंट के टाइम पे कलेक्ट करना है, ना कि बिल के टाइम. ये चीज है सर. जी सर उन्हीं का एक क्वेश्चन आ रहा है. एडवांस पेमेंट रिसीव्ड एज ऑन 1 जुलाई 21, परचेजेस मेड सब्सिक्वेंटली, whether TDS under section 194Q is required to be deducted. 101%. मैंने कहा 50 लाख से ऊपर अगर हो गया 100 सारा मिलाकर पेमेंट आई या क्या है तो आपको TDS काटना ही है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द सेल वैल्यू और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, whichever is earlier. काटना ही काटना.
आई थिंक सर नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष पुरी जी का है कि वेदर इट विल इंक्लूड जीएसटी और नॉट, वो आपने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया। नहीं क्लैरिफाई नहीं किया 194 क्यू में, नहीं किया, अभी कर रहा हूं। ऑलराइट, संदीप जी एक सवाल मेरा भी है। जी 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 हाँ जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि फिर गवर्नमेंट ने यही क्यों नहीं किया कि उसको बिल पे टीसीएस को इंट्रोड्यूस करते, व्हाई ऑन रिसीट और पेमेंट, मैंने व्हाई कहा नॉट ऑन आपको सेल एक, बिल सर? प्लीज सर एक बात देखिए, बिल अगर एडवांस पेमेंट आई है तो उसमें कौन सा बिल होगा? मैं एडवांस पेमेंट की बात कर रहा हूं। और जब एडवांस पेमेंट आती है उसमें जीएसटी भी कलेक्ट हो जाता है, जीएसटी भी जमा कराना पड़ता है। मेरा पॉइंट ये है, बिल कई बार बाद में आता है, आपने एडवांस पेमेंट कर, तो इसलिए वो बिल के टाइम पे नहीं, एडवांस पेमेंट के टाइम में टीसीएस कलेक्ट करना, टीडीएस डिडक्ट करना है। और आपको तो पता है इनकम टैक्स में जितने भी टीडीएस के सेक्शन है, थोड़े से छोड़ दीजिए, सब में लिखा है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। ये तो हर जगह है, आप तो देख लीजिए, सिर्फ वो लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, सैलरी जो पेमेंट बेसिस पे है, बाकी तो पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तो ये उसी लाइन पे है, कोई नई लाइन नहीं है सर। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू। सर संजीव कुमार जी का क्वेश्चन है, इज टीडीएस डिडक्टेड बिल वाइज और मंथ वाइज अंडर सेक्शन 194Q? सर एक मिनट, फर्क नहीं पड़ता बिल वाइज, या हमने 7 तारीख को जमा कराना है, हमने 7 तारीख को जमा कराना है, क्या फर्क पड़ेगा? अब बिल वाइज हो क्या हो, जितना महीने का वो आया वो 7 तारीख को जमा कराना है। तो टीडीएस आप डिडक्ट करके ही तो जमा कराएंगे, तो आप हर बिल में डिडक्ट कर लीजिए, एट द टाइम ऑफ पेमेंट जब आई डिडक्ट कर लीजिए, विच एवर इज अर्लियर है। मैंने तो आपको बोला, तो प्रैक्टिस तो यही होनी चाहिए, जब आप बिल क्रेडिट करें तो टीडीएस उसमें से डिडक्ट करें, वो तो होता ही है। वो अलग बात है कि आप इकट्ठा महीने का भी कर लोगे, फर्क तो कोई पड़ना नहीं है, क्योंकि जमा कराने में 7 को जमा करा दिया तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है ही। सर ठीक है जी, अशोक कुमार सिंगला जी का सर क्वेश्चन है बरनाला से, वेदर टैक्स इज डिडक्टेड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स बाय वन ब्रांच फ्रॉम अनदर? नहीं सर, ये जीएसटी की बातें ना करो, ये जीएसटी में है कि अपने आप को बेचकर भी, अपने आप को ट्रांसफर करके भी जीएसटी होता है। ये सेल नहीं, ये सेल नहीं, ये ट्रांसफर है जी, नहीं ये परचेज नहीं है। जो ब्रांच ने परचेज किया वो दोनों तो सेम आदमी है यार, टीडीएस तो दूसरे का कटना है, अपना ही टीडीएस काट के अपना ही जमा करा दो। अरे रिटर्न तो एक ही जानी है मेरे भाई साहब, रिटर्न तो एक ही है, आपकी एसएससी तो एक ही है, उसकी 2 ब्रांचें, 10 ब्रांचें, 100 ब्रांचें, तो टीडीएस किस बात का? जीएसटी को कॉन्सेप्ट को या मत लाइए, जीएसटी कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, क्योंकि जीएसटी के कॉन्सेप्ट में ये आया क्योंकि जीएसटी स्टेट और सेंट्रल दोनों का होता है, तो हर स्टेट में अलग अलग है, इसलिए उन्होंने कहा कि जीएसटी सेंट्रल कलेक्ट कर लेगा जब आप दूसरे ब्रांच को दोगे या इंटरेस्ट, तो इसको यहां मत लाइए, इससे कोई लेना देना नहीं, ये सेल नहीं है। आगे सर एक मिस्टर जेवी मंजूनाथ हैं जी, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, इन केस ऑफ कमीशन एजेंट्स एट एपीएमसी यार्ड, कमीशन इज हिज इनकम बट फॉर द टर्नओवर जीएसटी रिटर्न्स आर फाइलिंग, वेदर दिस सर मैंने बोला इनकम टैक्स में 2 तरह के आड़तिया होते हैं, कच्चा आड़तिया, पक्का आड़तिया। कच्चा आड़तिया वो होता है जो किसी के ब्याह पे माल बेचे, जैसे कंसाइनी होता है, वो माल का ओनर नहीं होता, वो माल का ओनर नहीं होता, वो सिर्फ कमीशन लेता है। हाँ, पर जीएसटी पर्पसेज, सेल टैक्स पर्पसेज, व्हाटएवर पर्पसेज वो अपना रजिस्टर कराता है, लेकिन वो माल का ओनर नहीं है। पक्का आड़तिया जो कमीशन एजेंट है, वो माल अपने नाम पर बेचता है, पहले खरीदता है और फिर बेचता है, वो कमीशन चार्ज नहीं करता। सो पक्का आड़तिया कवर्ड है, कच्चा आड़तिया कवर्ड नहीं। क्लियर है सर? बिल्कुल सर। आर के बस्सी जी हैं मंडी गोविंदगढ़ से, उनका क्वेश्चन है, इन केस ऑफ न्यू कंसर्न देन प्रोविजन इज एप्लीकेबल और नॉट? सर लास्ट ईयर का टर्नओवर नहीं है तो प्रोविजन कहां से होगा? आपने लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है, तो लास्ट ईयर का अगर टर्नओवर नहीं है तो इस साल का आपको कोई टीडीएस का कोई क्वेश्चन ही नहीं। लास्ट ईयर का टर्नओवर होता तो कर देते, नहीं हो। इवन 2060 में भी लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है, अपना इस साल का थोड़ी देखना है। सर विनोद मित्तल जी का क्वेश्चन है, सर्कुलर ओवरराइडिंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट?
सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट। Not on the process. तो आपको तो फायदा है ना, बेनिफिशियल सर्कुलर जो होगा उनके ऊपर बाइंडिंग है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? वो तो उन्होंने ऑलरेडी कहा था हम गाइडलाइंस लाएंगे, और गाइडलाइंस दे दी उन्होंने थ्रू सर्कुलर नंबर 13/2021 डेटेड 30th June 21। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है जेवी मंजूनाथ जी का अगेन, वेदर परचेजेस फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्सीडिंग रुपीस 50 लाख अभी तक कोई एग्जेम्पशन नहीं दी, एग्रीकल्चर कोई एग्जेम्पन नहीं दी है। हालांकि पावर है टू गिव एग्जेम्पशन फॉर सर्टेन केसेस। मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा जी। क्लैरिटी आई है, जरा मैं बताता हूँ। कुलदीप गुप्ता जी का क्वेश्चन है, सर इन केस ऑफ टीडीएस ऑन गुड्स रिटर्न्ड अगेंस्ट परचेज, टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड ऑन फुल अमाउंट, तो उसमें क्या? दोबारा बोलिए। सर टीडीएस, सर इन केस ऑफ टीडीएस ऑन गुड्स रिटर्न्ड अगेंस्ट परचेजेस, सर अभी क्लैरिफिकेशन में बोलूंगा ना, सर्कुलर में सब कुछ दिया हुआ है, इंतजार कर लीजिए, या तो फिर यहाँ रुक जाए, आगे बढ़े और सर्कुलर को पूरा कर दें, उसके बाद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर पूरा कर ही लेते हैं मेरे ख्याल से, हम लोग पूरा कर लेते, पूरा कर लेते। अब आइए सर्कुलर में वही बातें लिखी हैं। एक तो वो कि इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, कमोडिटीज थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उस पे कोई टीडीएस नहीं कटना है। पहला तो ये क्लियर कर दिया है। दूसरा पॉइंट है, अब जीएसटी का क्या? उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि 206C1H में तो हमने कहा था कि जीएसटी को इग्नोर करिए और आपको पूरी अमाउंट रिसीट पे करना है। अब इसमें तो है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ अमाउंट परचेज ऑफ गुड्स वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख तो करना है। तो उन्होंने क्लियर करा, पेमेंट है तो जीएसटी को इग्नोर करना है, आपको पेमेंट पे पूरे पे काटना है। लेकिन अगर बिल आया है तो बिल में अगर जीएसटी चार्ज है तो आपको जीएसटी के चार्ज वाले को नहीं लेना, सिर्फ बिल अमाउंट पर लेना है। मैंने क्या कहा, आपके पास एक बिल आया 60 लाख का, 12% जीएसटी लगा हुआ है 7,20,000, बिल आ गया पहले, तो आपको 60 लाख पे टीडीएस काटना है। सर उस पे नहीं काटना, उन्होंने रेफरेंस दे दिया, वो पुराना जो सर्कुलर था सर्विस टैक्स वाला 2017 में, उसका रेफरेंस दे दिया कि वो नहीं। हाँ, अगर पेमेंट है तो उसमें हमें तो बाइफरकेट कर नहीं सकते कि जीएसटी कितना है और कितना नहीं है और कितने अमाउंट का है, इसलिए पेमेंट में जीएसटी लेस, पेमेंट करते हुए पूरे अमाउंट पे काटना है। अगर पेमेंट बेसिस पे टीडीएस काटोगे तो पूरे पे काटना है, लेकिन बिल बेसिस पे टीडीएस काटोगे विच एवर इज अर्लियर तो उस पे जीएसटी एक्सक्लूड करना है। ये क्लियर हुआ सर? ये थोड़ा पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, लेकिन ये क्लियर आपको बता, आगे बढ़ती है। ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये आगे आपको ये कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा, अभी तक लोग कहा था बायर जो होगा वो बायर ऑफ द गुड्स हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू सेलर ऑफ द गुड्स। अब पॉइंट आया सर, जरा ध्यान से सुनना कौशल जी, और ध्यान से सुनना अशोक जी। अशोक जी सामने है, जुनेजा जी, तो मैंने कहा चलो उनसे भी बात कर लेते हैं। मैं क्या है कि ध्यान से सुनना, आपका माल परचेज किया, इंपोर्ट किया है, बाहर से किया है, तो आपको कहा कि अगर बाहर से परचेज किया है तो बायर ऑफ द गुड्स में, सेलर रेजिडेंट है तो ठीक है। अब मैंने माल एक्सपोर्ट किया, मैं सेलर, मैं तो रेजिडेंट हूं, लेकिन जो बायर है वो नॉन रेजिडेंट, तो क्या यहां तो क्लियर नहीं किया कि टीडीएस का क्या होगा, क्योंकि बायर ऑफ द गुड लिखा है, ये नहीं लिखा एवरी रेजिडेंट बायर ऑफ द गुड्स, एवरी पर्सन हु इज द बायर ऑफ द गुड्स बीइंग बायर ऑफ गुड्स। तो इस सर्कुलर में क्लियर कर दिया है कि नॉन रेजिडेंट को इसके लिए टीडीएस नहीं डिडक्ट करता, क्योंकि ये लोगों ने पूछा था मेरे से कि सर ये कैसे हो गया, सेलर तो रेजिडेंट है, माल लिया, लेकिन मैंने गुड्स इंपोर्ट किया है, और जो सॉरी बायर, हाँ सेलर रेजिडेंट है, बायर नॉन रेजिडेंट। यहां कहीं क्लियर लिखा ही नहीं है कि बायर ऑफ द गुड्स जो होगा वो सेलर जो होगा
सॉरी बायर जो होगा वो रेजिडेंट होना चाहिए। तो क्या उस बायर, मैं बायर हूं तो सेलर तो वो है, सॉरी मैं क्या हूं, सेलर हूं, और वो बायर वो बाहर है, क्या बायर को टीडीएस काटना पड़ेगा? अब क्लियर कर दिया, अगर बायर बाहर है और आप सेलर यहां है, आपने माल परचेज किया है उससे, तो टीडीएस कलेक्ट नहीं करेगा, वो तो नॉन रेजिडेंट नहीं करेगा। अब बड़े ध्यान से सुनना जो इंपॉर्टेंट बात है, सर मैं बायर ऑफ द गुड्स, मैंने टीडीएस काटना है, ध्यान से सुनना। सेलर ऐसा आदमी है जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10। अब यहां से क्लियर होगा जो बातें मैं कर रहा था, जरा सुनिए सर। मैं बायर ऑफ द गुड्स, मैंने एग्रीकल्चरल गुड्स खरीदा, मैं बायर ऑफ द गुड्स, उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है 10(1) में, उस केस में टीडीएस नहीं काटना। ये क्लैरिटी क्या दी है? अगर बायर मैं हूं, मुझे टीडीएस काटना है, तो मुझे क्या देखना है, सेलर क्या है, सेलर की इनकम टैक्सेबल है कि नहीं, क्योंकि सेलर की इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसको तो हर बार रिटर्न भरनी पड़ेगी टीसीएस वापस, टीडीएस वापस लेने के लिए। तो क्लियर कर दिया, जो सेक्शन 10 में सेलर कवर्ड है उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो टीडीएस मुझे नहीं काटना। अब उधर उल्टा ले लो, 206C1H, मैं सेलर हूं, मैं सेलर हूं, मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है, तो मैं देखूंगा अगर बायर ऑफ द गुड्स की इनकम एग्जेम्प्ट है तो मुझे टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। ये जरा समझने वाली बात है। मैं 206S में सेलर हूं, मुझे टीसीएस कलेक्ट करना, और बायर कहते हैं मेरी इनकम तो टोटली एग्जेम्प्ट है, मुझे तो रिटर्न भरनी पड़ेगी क्योंकि मेरी तो इनकम एग्जेम्प्ट है, तुम टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो, मुझे कैसे क्रेडिट मिलेगा? तो इन्होंने क्लियर कर दिया, अगर उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है तो आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। और उल्टा ले रहा हूं, अगर बायर मैं हूं और सेलर की इनकम एग्जेम्प्ट है तो बायर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। ये क्लियर हुआ? ये पॉइंट सोचने वाला, समझने वाला है कि उन्होंने सारे सेक्शन 10 की जितनी भी इनकम एग्जेम्प्ट है उन सबको छोड़ दिया है। मेरी बात समझ रहे हैं सर? मेरी बात समझ रहे हैं सर? सुनिए, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने गुड्स बाई किए, किससे? किससे बाई किए? एक सेलर से, वो बाई किए। अब मुझे टीडीएस काटना है, तो ऑब्वियसली मुझे तो टीडीएस काटना पड़ेगा, क्योंकि मैं बायर हूं और सेलर को क्रेडिट मिलना है, सेलर को क्रेडिट मिलना है। लेकिन दूसरी तरफ जाइए, इसमें सेलर टीसीएस नहीं काटता क्योंकि मेरी इनकम एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10। तो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा इसके बारे में, क्लैरिटी उन्होंने दी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का पॉइंट ये है सर, दोनों सेक्शन लग रहे हैं। मैं बायर हूं, मेरा टर्नओवर पिछले साल का 10 करोड़ से ऊपर है, सेलर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, तो कौन सा काटना है, टीडीएस या टीसीएस? लॉ के हिसाब से जाएं तो टीडीएस ही काटना पड़ेगा, क्योंकि टीडीएस उन्होंने कहा है कि टीडीएस प्रेफरेबल है, क्योंकि आपका टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है, ज्यादा है, उसका भी 10 करोड़ से ज्यादा है, फिर भी टीडीएस ही कटना चाहिए। मैं बताऊंगा एक सर्कुलर में कुछ और भी आता है। दूसरी बात, मैं बायर हूं, मेरा टर्नओवर लास्ट ईयर का 10 करोड़ से कम है, लेकिन सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और पेमेंट उसने रिसीव कर ली मेरे से 50 लाख से ऊपर, तो टीसीएस कलेक्ट कौन करेगा? सेलर करेगा। लेकिन कौशल जी, दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है, बायर का भी सेलर का भी, तो कोई भी टीडीएस नहीं है, कोई भी टीसीएस नहीं, दोनों का 10 से नीचे है। लेकिन अगर बायर का 10 से ऊपर है तो प्रेफरेबली बायर को करना था। लेकिन एक सर्कुलर में उन्होंने दे दिया कि अगर किसी केस में सेलर ने टीसीएस कलेक्ट कर लिया तो बायर ना भी करे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 0.1% वहां भी टीसीएस है और वहां भी है। अगर आप प्रूव कर दे कि उसने टीसीएस कलेक्ट कर लिया तो हम टीडीएस का पेनल्टी नहीं लगाएंगे, उसको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन प्रेफरेंस किसकी है? टीडीएस काटना जरूरी है, क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट है। हो सकता है टीसीएस काटने वाला 50 लाख से ऊपर रिसीव ही नहीं हुई, तो फिर क्या करोगे? फिर तो टीडीएस ही होना है। मेरी बात समझ गए सर?
तो वो आपको ध्यान रखना है कि प्रेफरेबली टीडीएस है, लेकिन कुछ केसेस में जहां पर टीडीएस टीसीएस दोनों लग रहे हैं और टीसीएस भी कलेक्ट हो गया तो सर्कुलर ने कह दिया हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, ये भी क्लियर कर दिया है। अब फिर सवाल पूछिए, क्योंकि कई क्लैरिटी मैंने दे दी, और कोई क्लैरिटी आपकी हो तो मैं जरूर दूं, पूछ लीजिए सर, पूछिए सर। हाँ जी संदीप जी बोलिए। जी सर, जी सर। Sir, I'll just see the new messages which have come. सर एक बार क्वेश्चन इकट्ठे ही ले लेंगे, एंड में मेरे ख्याल से सब लोगों के होंगे। और ये क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड है, और जी। ये वैसे एक और बता दूं, जी, 194Q 206C1H खत्म हो गया, अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन, बाकी तो अलग चैप्टर है। ये वाला इसमें हमने सब कुछ बता दिया, इसलिए आप जो मर्जी पूछ लीजिए पहले इस टॉपिक के ऊपर। जी इसलिए सर I'll continue with the questions जो हमारे पहले। हाँ जी पूछिए। ये मैंने सर्कुलर पहले नहीं बताया था कि मैं चाहता था लोगों के सवाल आए, और ताकि दोबारा वो सर्कुलर को पढ़े तो सही। अब हमें पढ़ना लिखना पड़ेगा सर। संदीप जी, जमाना चला गया। कौशल जी कहते थे मैं उस AO को जानता हूँ, मैं उस कमिश्नर को जानता हूँ, तो हो जाएगा। जी। अब काम नहीं होगा सर, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा सर। अब तो बेसलेस काम है। बात याद आ जाती है पढ़ते हुए, जब ना आपने पहले कई बार सुनाया हुआ किस्सा कि जब तक हम समझ आती है तब तक लॉ चेंज हो जाता है। क्या वो तो बात मानता हूँ, लेकिन अब तो आपको वो वाला लॉ भी याद रखना है जब असेसमेंट करानी है, और वो वाला याद रखना है जो नया आ गया। चेंज तो हो गया, पहले 206C1H आया, अब साला 6 महीने के अंदर अंदर ही कौन सा आ गया, 194Q। उनको लाना तो 194Q था, पहले उनसे हो गया, बाद में सोचा ये तो गड़बड़ हो गई तो नहीं चली। अरे वो तो 206C1H को नहीं लाना था, ये बाद में उनके ख्याल आया तो किया। चलिए सर, कुलदीप गुप्ता जी का क्वेश्चन था कि सर इन केस ऑफ टीडीएस ऑन गुड्स रिटर्न्ड अगेंस्ट परचेजेस, वो सर्कुलर में लिखा है कि अगर आपने माल पे टीडीएस काट लिया है, ऑलरेडी काट लिया, क्योंकि परचेज पे काट लिया और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर कट गया, बाद में गुड्स रिटर्न हो गए, तो सर्कुलर में लिखा है अगर आपने पैसे रिफंड कर दिए, तो उस केस में हम जो भी टीडीएस काटा है वो अगले वाले में एडजस्ट कर देंगे, हम अलाउ करेंगे। लेकिन अगर आपने टीडीएस काटा ही नहीं था अभी तक और गुड्स इमीडिएटली रिटर्न कर दिया, तो वैसे ही कोई मतलब नहीं है टीडीएस टीसीएस का, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है अगर पेमेंट ऐसी तो आप अगले बिलों में एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अगर ये गुड्स आपने रिटर्न किया तभी तो, अगर रिप्लेस किया है उसके बदले दूसरा ले लिया है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। भाई क्वालिटी ठीक नहीं थी, उसने वही बिल वही उसी में आपको रिप्लेस कर दिया, तो फिर रिटर्न थोड़ी है। रिटर्न तो तब माना जाता है जब माल वापस चला गया, आपने पेमेंट रिसीव कर या कैंसिल हो, यही होगा ना, और तो कुछ नहीं है ना ये चीज। एक क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास व्हाट्सएप पे। A, who is the seller, he has sold goods of rupees 70 lakhs to B buyer from April 1 to June 30, but B paid only rupees 40 lakhs up to June 30. With effect from July 1, liability shifts to B to deduct TDS. नहीं, मैंने बताया शुरू में ही, अगर either of the transaction, मतलब परचेज या पेमेंट रिसीव्ड बिफोर 1 जुलाई अगर हो चुकी है, तो उसका आगे जो भी पेमेंट करनी है उस पर टीसीएस और टीडीएस नहीं करेक्ट करना। आपने जो एग्जांपल दी दोबारा देना, मैं उनको एग्जांपल से बताऊंगा। A, who is the seller, he has sold goods of rupees 70 lakhs to B from 70 लाख हो गया ना, July 70 लाख हो गया ना 20 जून से पहले, ठीक है सर। 70 लाख का माल बेचा, पर जो भी पेमेंट आएगी 40 लाख, 40 तो आ गई, 30 और आनी है, आएगी। हाँ जी, टीडीएस नहीं कटना है जी। लेकिन रुकिए, बाकी आइटम पे 1 जुलाई से कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ द गुड्स मोर देन 50 लाख हो। बाकी उस बिल के पे नहीं, उस अमाउंट पर जो 70 लाख का बिल था, जो 40 लाख आ चुका है, 30 आना है, उस पर टीडीएस नहीं कटना। आइदर परचेज और द पेमेंट इज बिफोर 1 जुलाई, तो सर्कुलर में लिख दिया है उसकी जो इवेंट हैपनिंग आफ्टर होगी उस पर कोई नहीं होना।
लेकिन क्योंकि 70 की परचेज कर चुके हो तो अब अगली परचेज जो भी करोगे उस पे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया सर? चलिए सर, दीपक मित्तल जी का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कमीशन एजेंट कच्चा आड़तिया, ही इज सेलिंग टिम्बर, द पर्सन इश्यूज आई फॉर्म विद टिम्बर एंड कमीशन बोथ अमाउंट्स, बट इन एक्चुअल हिज इनकम इज कमीशन, आई फॉर्म नहीं है सर, फॉर्म 27D होता है जो अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करना है। मैंने जी आई फॉर्म तो कोई सुना नहीं, कौन सा आई फॉर्म है? सर ये सर मार्केट एक्ट के अंदर होता है, जो एग्रीकल्चर मार्केट एक्ट के अंदर। क्या लेना, वो ओनर ही नहीं है। हाँ, जब वो ओनर नहीं है तो सेलर का कटेगा। जो सेलर है, सेलर कौन है, उसका टीडीएस कटना है, इसका थोड़ी कटना है। जी, कच्चे आड़ती के केस में आपने कहा कि टीडीएस नहीं कटेगा। नहीं, उसका नहीं कटेगा, वो सेलर का कटेगा। सेलर का कटेगा, सेलर का कटेगा। सेलर जी जी जी। वो तो कंसाइनी एजेंट है, वो नाम लिखेगा ना सेलर का, उसका कटेगा। अरे वो सर, कंसाइनी एजेंट नीचे नाम लिखता है ऑन बिहाफ ऑफ सच एंड सच सेलर, तो उसका कटेगा। सर लेकिन वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो चिंता मत करो ना। तो 10I वाला कंसेप्ट आ गया, मैंने बताया 10 सेक्शन में माफ है। सर वो यही पूछ रहे हैं कि जो कच्चे आड़ती से बाय करता है, जब वो उसको कच्चे आड़ती को पेमेंट करेगा तो क्या उसके ऊपर टीडीएस काटना जरूरी है उसको 194 क्यों? सेलर कौन है? सेलर एग्रीकल्चरिस्ट है। एग्रीकल्चरिस्ट हो, कच्चा आड़ती और एग्रीकल्चरिस्ट इनकम तो सेलर की माफ है ना। जी जी, तो उसके बिहाफ पे बेच रहा है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक सर, मिस्टर अश्विन का क्वेश्चन है, फर्स्ट 50 lakhs receipt is exempted. क्वेश्चन है whether first 50 lakhs receipt is exempted. किसके बारे में कह रहे हैं? 192061H और या 194? I think it should be 194Q. 194Q मतलब 30 जून तक जो हो गया भूल जाओ। 30 जून के बाद अगर वो 1 अप्रैल से 50 से ऊपर हो चुका है तो आगे कोई भी पेमेंट या बिल होगा whichever is earlier, उस पे टीडीएस काटना ही पड़ेगा। जी जी सर, जीएसटी का आपने बता दिया कि जीएसटी इंक्लूडेड। जीएसटी मैंने बोला कि अगर तो वैल्यू ऑफ बिल है उस पे जीएसटी नहीं लेना, उस पे टीडीएस नहीं काटना। लेकिन अगर पेमेंट है तो उसमें जीएसटी को सेपरेट कर ही नहीं सकते, उसके ऊपर पूरे पे काटना है। ये क्लियर किया उन्होंने सर्कुलर में 13/2021। सर सीएस सुरेंद्र शर्मा जी का क्वेश्चन है, इफ लास्ट ईयर द फर्म वाज पार्टनरशिप फर्म and from 1st of April 21 converted to proprietorship, then whether provision of TDS सर वो 45(4) में आएंगे ना, अभी तो वो चैप्टर शुरू नहीं किया। टीडीएस की बात कर रहे हैं कि सर टीडीएस की बात कर रहे हैं। टीडीएस सर वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज है, पैन ही चेंज हो गया, गया, थोड़ी रह गई है, उसका क्या लेना देना? उसका नो बेसिक थिंग। सर संजीव कुमार जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोविजन इन केस ऑफ ट्रस्ट लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस? अगर उनकी इनकम सेक्शन 10 में तो बचेंगे, अगर सेक्शन 11, 12, 13 में है तो नहीं बचेंगे। सर अश्विन जी का एक और क्वेश्चन है, आई एम लायबल टू डिडक्ट टीसीएस एज पर प्रीवियस ईयर टर्नओवर एंड रिसीव्ड ₹51 lakhs इन जुलाई 2021। सर पिछले टर्नओवर का इस साल पेमेंट आ रही है, टीसीएस तो पेमेंट, मैं तो ये बोल रहा हूं अगर जून तक 50 से ऊपर आ गया तो आपको टीसीएस कलेक्ट करना ही करना था। अगर आपका जून तक 50 लाख से ऊपर पेमेंट, वो रिसीट बेसिस पे, वो सेल से तो है ही नहीं, वो सेल से तो है ही नहीं। और सपोज करो आपका 50 लाख से ऊपर पेमेंट आ गई लास्ट ईयर सेल की 50 लाख से, तो वैसे ही टीसीएस कलेक्ट होना था 30 जून तक। लेकिन माल लास्ट टाइम बेचा और पेमेंट अभी आ रही है, तो भी मैंने कहा इस साल का टर्नओवर 50 लाख से ऊपर होना चाहिए ना, उसका है। इस साल का टर्नओवर 50 से ऊपर हो तो अमाउंट क्रेडिटेड और पेड विच एवर इज अर्लियर। जब तक 50 पूरा नहीं होगा तब तक तो टीडीएस टीसीएस है ही नहीं। करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का देखना है, पुराने सालों का नहीं देखना है। हमने तो 30 जून से पहले भी कह दिया, कोई एंट्री करी है और पेमेंट आ चुकी है या बिल आ गया है तो उसके ऊपर टीडीएस होना ही नहीं। ये तो अभी बताया मैंने आपको, उस पर टीडीएस नहीं होना है। पर उनको महानुभाव को कहिए एक बार अपने हाथ से सर्कुलर पढ़कर जरूर देख ले। सर सीएस सुरेंद्र शर्मा जी का क्वेश्चन है, इफ टीसीएस इज एप्लीकेबल बट टीसीएस नॉट कलेक्टेड ड्यू टू सबमिशन ऑफ फॉर्म 27C, देन टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल और नॉट? ये मैंने उनको कहा था, ये दोनों जगह पे आ सकता है, इधर भी 194Q में भी और 206C में भी। क्योंकि
अगर उसने, तो मैंने उनको कहा था ये क्लियर करो, किया नहीं है, लेकिन वर्ड डिडक्टेबल लिखा है, डिडक्टेड नहीं लिखा। सो डिडक्टेबल तो था, लेकिन क्योंकि 27C दे दिया तो इसलिए वो डिडक्ट नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से, मैं पक्का नहीं कह रहा, मैंने उनको कहा था आपने ये क्लैरिफिकेशन नहीं दी, आपको देनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से नहीं कलेक्ट हो। सर अमित बजाज जी, आप बताऊं क्यों उस आइटम का 27C अपलोड हो जाता है। अपलोड जब होता है ना तो मॉनिटरिंग ऑलरेडी हो गई। ये पर्पस क्या है, टीडीएस या टीसीएस का पर्पस नहीं है, इसकी डेटा माइनिंग का पर्पस है, डेटा कलेक्ट। तो 27C में भी तो डेटा कलेक्ट तो हो गया ना सर, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ 0.1% बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, पर्पस कुछ और था। आपको पता ही है कि चोरी रोकना, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़े बड़े महानुभाव हैं, क्या क्या करते हैं मैं बताना नहीं चाहता। चलिए सर आगे बढ़िए। अमित बजाज जी का क्वेश्चन है, वेदर टीडीएस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। मैंने कह दिया ना, नहीं, आ गया ना लॉ कि वो सेल बायर वहां से है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, तो क्या सेलर, इंपोर्ट आपने किया, आप सेलर हैं, सेलर रेजिडेंट है, तो बायर तो क्या कह रहे हैं, इंपोर्ट किया आपने इंपोर्ट किया है, आप बायर, क्या सेलर रेजिडेंट है? नहीं है, फिर किस बात का? सेलर रेजिडेंट होना चाहिए ना, आप बायर है, सेलर रेजिडेंट होना चाहिए, सेलर रेजिडेंट नहीं, कोई इनकम ही नहीं है उसकी, कोई इनकम नहीं। सर सुमीर गुप्ता जी का क्वेश्चन है, इट्स अ लॉन्ग वन, आई विल रीड इट। इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट आफ्टरवर्ड्स व्हेन परचेज बिल विल कम, then how will it be adjusted, because TDS is already deducted on advance payment which includes GST, but now purchase will include GST portion. Example, अब तो लेना पड़ेगा, पूरा लेना पड़ेगा, एक बार ले लिया तो दो नहीं होगा सर। वही तो कह रहे हैं, पेमेंट में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए 0.1% कौन से फांसी लग जाएगी यार, आपको क्लैरिटी तो दे दी उन्होंने। हाँ, बिल अगर पहले आ गया और बिल पे काटना है तो विदाउट उसके काटिए, लेकिन अगर पेमेंट पे काटना है, वो तो 2061H में भी लिखा है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पे ही, तो पेमेंट में पता ही नहीं है कितना जीएसटी है कितना कौन, यही तो क्लियर कर रहे हो, यही तो क्लियर कर रहे हो, मत दो पेमेंट पहले। सर ईशांत गुप्ता जी जम्मू टैक्स बार एसोसिएशन से पूछ रहे हैं, सर इफ प्रोप्राइटर हैज डाइड एंड नाउ हिज वाइफ इज द प्रोप्राइटर who is continuing the business after getting new GST and due to death of proprietor and transfer etc. In this case, for TDS and TCS provision, previously turnover of old GSTN in which the husband... Yes, लिखा हुआ है सेक्शन में कि अदर सेक्शन 78 सबसेक्शन 2 में अगर सक्सेशन अदरवाइज ऑन डेथ होता है तो वो दोनों अलग अलग फर्में मानी जाती है। अगर सक्सेशन डेथ की वजह से हुआ है और लीगल ईयर का हुआ है तो वो फर्म, पुराने लॉसेस भी कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, पुराने लॉसेस उसके हस्बैंड के जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, ये लॉ में क्लियर है। प्लीज आस्क हिम टू रीड 78 सबसेक्शन 2, उसमें लिखा सक्सेशन अदरवाइज ऑन डेथ, ये डेथ की वजह से सक्सेशन हुआ, इसलिए लॉसेस कैरी फॉरवर्ड भी हो जाते हैं और आपकी वो फर्म कंटिन्यू करती है इन द आईज ऑफ द लॉ। जीएसटी इज ए सेपरेट इशू, जीएसटी में तो ब्रांच ट्रांसफर में भी जीएसटी है, इनकम टैक्स इज ए सेपरेट इशू। आप इनकम टैक्स में जाइए, जीएसटी तो पागल कर देता है आदमी को कि वो तो हर चीज में जो आंखें बंद करके जीएसटी कर लो, लेकिन इनकम टैक्स कहता है जी नहीं, आपस में सेल नहीं होती, यू शुड अर्न इनकम फ्रॉम आउटसाइड, बट जीएसटी कहता है हमने तो ले लेना है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और इन सेंट्रल गवर्नमेंट का रगड़ा है, इसलिए हो रहा है सर। इसलिए सर अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला सर एक दर्दे दिल बयान करा है सीए अंकुर गुप्ता जी ने कि व्हाई गवर्नमेंट इज मेकिंग एक्ट सो कॉम्प्लिकेटेड, इट इज रियली टफ। ताकि आप लोगों को काम ज्यादा मिले सर, इसमें तो काम मिलेगा ना, जीएसटी का काम मिला, अब काम तो उसी को मिलेगा जो प्रोफेशनल है, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर। मैं बताऊं, मैं मजाक में कहा है, हमारे जो महानुभाव है ना क्लाइंट, ये कुछ भी कर सकते हैं। 60,000 करोड़ रुपए का इनपुट क्रेडिट ले लिया बोगस बिल्स, हमने कहा था ले लो, 60,000 करोड़ रुपए का इनपुट क्रेडिट लिया बोगस बिल्स, तभी तो वो आ गया 271AA-D, तभी तो आ गया जीएसटी में भी कि भैया 100% पेनल्टी लग जाएगी इनकम टैक्स में अगर आपने बिल जमा किया
उसको भी लगेगी, जिसने बिल दिया बोगस उसको भी लगेगी, और जिसने दिल दिलवाया उसको भी लगेगी। करे क्या सरकार, क्या करे? जब गलत काम करने से हटेगा नहीं तो सरकार को तो कॉम्प्लिकेट करना ही पड़ेगा। ये चक्कर है, हम अभी सुधरे नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं सबको, 360 डिग्री प्रोफाइल बन चुका है, सबकी इंफॉर्मेशन उनके पास है। इवन रीअसेसमेंट में भी 148 आके कह दिया है कि भैया अब ये सब कुछ पता है, हम आपकी इंक्वायरी करके आपको पहले अपॉर्चुनिटी देंगे। पहले तो रीजन पहले रीजन हम मांगते थे, अब तो कह रहे रीजन ये लो ना, आपने ये गलत काम किया हुआ है बताओ। सर वक्त बदल गया है, पूरी इंफॉर्मेशन जो टीडीएस कटेगा डिविडेंड पे, अगर नहीं भी कटा तो भी पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास है। क्या डिविडेंड आपको मिला, चाहे 10 रुपए मिला, 2 रुपए मिला, 50। पहले तो लोग भरते ही नहीं थे, हर एक किसको पता है टीडीएस कटा या नहीं। इवन सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जिसमें टीडीएस नहीं कटा वो भी आपका है। अभी थोड़े दिनों में कैपिटल गेन जो होगा शॉर्ट स्टॉक मार्केट का वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डोनेशन तो आने ही जा रही है। और मैंने कहा संदीप जी थोड़े दिन रुक जाइए, वो कहेंगे आपकी रिटर्न तैयार है, साइन कर दो, हमें सब कुछ पता है। तो सिंप्लीफाई तो हो जाएगा ना, फिर तो सिंप्लीफाई तो कर दिया उन्होंने कि सारी चीजें आपकी पहले ही रिटर्न में डाल दे। सर ये एक्चुअली डाटा माइनिंग में यूज करते हैं, वो आपको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। आपको करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नो अदर थिंग, करेक्ट। सर हमारी तो इच्छा थी कि आप भी फाइनेंस मिनिस्टर अब चेंज हुए थे तो फाइनेंस मिनिस्टर आप बन जाते सर, हमारे लिए अच्छा हो जाता, दोनों तरफ के व्यूज आ जाते। प्रभु जी एक बात तो आपको बता दूं, मैं ना ही बोलना चाहता, कोई रिकॉर्डिंग ना हो जाए, मैंने सोचा था कोई ना कोई तो चेंज होगा। सर ये मन की बात है, इसके आगे नहीं बोल। सर अमित एक क्वेश्चन और, अमित गोयनका जी पूछ रहे हैं, इफ बायर्स और सेलर्स इनकम as the case may be is exempt, but documentary evidence is to be taken such exempt for such। क्या आर्गुमेंट्री है कि उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, उसकी रिटर्न की कॉपी ले लीजिए, या उसको बता देगा, वो लिख के देगा कि मेरी इनकम एग्जेम्प्ट है, इस नेचर की इनकम है। और क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? रिटर्न में उसका जो बिजनेस है पता लग जाएगा ना, और उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसने ऑलरेडी भी तो रिटर्न भरी होंगी जी, लीजिए जी। सर अरविंदर मुंडे जी का क्वेश्चन है लुधियाना से, इज 50 लाख एग्जम्पशन इन ईच फाइनेंशियल ईयर? यस यस yes, each year is a separate year. In a previous year लिखा है, in aggregate previous year नहीं लिखा, in a previous year। सर चंद्र साइकिल जी का क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उनका रिपीट है, वो कि पार्टनरशिप फॉर्म से प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बन गई कि तो एप्लीकेबल है कि नहीं है, वो आई थिंक वो एप्लीकेबल नहीं, आपने बताया। हिना शाह का क्वेश्चन है, इफ बोथ द पार्टी हैविंग टर्नओवर एक्सीडिंग ₹10 crores and deals in exempted goods like wheat and rice, then what is the position of TCS? सर ऐसा तो हो नहीं सकता, दोनों की इनकम एग्जेम्प्ट है। एक की एग्रीकल्चर इनकम है, दूसरे की कैसे एग्रीकल्चर होगी? ऐसा तो हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। पॉसिबल है, एक अगर एग्रीकल्चरिस्ट है वो हो सकता है, दूसरा कैसे एग्रीकल्चरिस्ट हो गया मेरे तो समझ में नहीं आया। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। हाँ वो ऐसा है, कोई और किसी सेक्शन 10 में हो तो ठीक है, और कोई सेक्शन 10 में हो तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर ये एग्जम्पशन की बात मेरे ख्याल से कंफ्यूजन हो गई है जीएसटी में, वहां पर एग्जम्पशन आइटम जीएसटी को छोड़िए सर, मुझे जीएसटी आता है जी। और यहाँ पर भूल जाइए जब जीएसटी जब इनकम टैक्स की बातें करें जी। सर अशोक सिंगला जी का बरनाला से क्वेश्चन है, whether TDS is liable to be deducted on the purchase of jewelry not connected with business? No, there is no condition that the purchase should be connected। एक मिनट सर, from business world का बायर जो कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अब उल्टे जगह जाइए, सेलर क्या कर रहा है? सेलर में बायर का वहां नहीं लिखा हुआ कि बायर कंज्यूमर नहीं हो सकता, वहां नहीं लिखा हुआ कि वह कंज्यूमर नहीं हो सकता, यहां लिखा है बायर उस बिजनेस की इनकम, वहां सेलर की बिजनेस इनकम लिखा है, बायर तो कोई भी हो, वहां पर सेलर वाला काम में आ सकता है जी। सर एक विनोद मित्तल जी ने थोड़ा बड़ा जनरल क्वेश्चन पूछा विद रिगार्ड टू साइट, आई विल स्किप दैट। ईशांत गुप्ता जी पूछ रहे हैं जम्मू से, सर प्लीज क्लियर इफ लॉसेस कंटिन्यू इन द केस ऑफ सक्सेशन, सो TDS and TCS applicable to successor or not if the husband's turnover is above 10 crores? लॉसेस का क्या कनेक्शन है? हमने तो पिछले उस फर्म का जो सोल प्रोप्राइटरी फर्म है उसका टर्नओवर देखा, हमें उसका टर्नओवर देखना, लॉसेस से क्या लेना देना? उस फर्म का जो सोल प्रोप्राइटरी है जिसमें वो लीगल एयर आ गया है
उसका पिछले साल का टर्नओवर क्या था, क्योंकि इनकम टैक्स में वो चेंज नहीं हुआ, इसमें जीएसटी की जो मर्जी करिए नंबर बदल गया। इनकम टैक्स में तो वो सक्सेसर आकर वो फर्म को कंटिन्यू करता है, अगर क्लोज कर देता है तो बात ही अलग है। जी sir, I think we are done with the questions as of now, so we can proceed ahead. We'll have a So TCS TDS over, जो कोई आइकाद आ जाएगा 45(4) के बाद I'll request anybody who has the question, he can raise his hand so that I can put him online, then he can ask the question. चलिए सर, let's proceed further. अब मैं एक चीज आपको बता दूं, जी सर। 45(4) मैं समझाऊंगा जरूर, लेकिन टाइम बहुत कम है। मैं बताता हूँ जितना 15 मिनट बढ़ा देंगे सर इसमें, है 15 मिनट और बढ़ा देंगे सर। चल देखता हूँ सर, मेरा एक आगे आ गए, मैं कोशिश करता हूँ। सुनिए सर, पहला जो 45(4) था उसमें लिखा था वेयर एनी अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर or the member of the AOP at the time of dissolution or otherwise, if there is any asset is received in kind, asset is received in kind at the time of dissolution or otherwise from the firm or AOP, then it will be, then for the purpose, then the firm shall be liable to pay tax on the basis of fair market value on this case. क्या कहते थे, अगर डिसोल्यूशन हुआ तो उसमें अगर कोई एसेट काइंड में आपने पार्टनर को दे दी, एसेट काइंड में दे दी, तो हम कहते थे एसेट इस तरह बिक गई है, तो इस केस में फर्म को उस एसेट पे टैक्स देना है, मार्केट वैल्यू माइनस इट्स इंडेक्स कॉस्ट और इट्स कॉस्ट, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो कॉस्ट, अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट करके टैक्स देना है। अब उसमें दो प्रॉब्लम, एक लिखता है where an asset is transferred by the firm to the partner, वो कहते हैं एक तो लीगल प्रॉब्लम ये थी कि ट्रांसफर नहीं मानी जाती, आप अपने आप को कैसे ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स आर द ओनर्स, तो एक तो ये रिश्ता था, तो उन्होंने वर्ड रिसीव कर दिया, चलो वो तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम एक और आई थी, वहां डिसोल्यूशन और अदरवाइज लिखा था। एक बॉम्बे हाई कोर्ट को छोड़कर सबने कहा था कि डिसोल्यूशन की नेचर का होना चाहिए, रिटायरमेंट या रिकॉन्स्टिट्यूशन इसमें इंक्लूड नहीं होता। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट एएन नायक की आई थी जिसमें लिखा था कि डिसोल्यूशन ये रिटायरमेंट भी इंक्लूड होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, लेकिन वो मानी नहीं। अब इन्होंने सारा ही बेड़ा गर्क कर दिया। क्या किया है सर, वो कहता है ये रिसीव है तो इसको ट्रांसफर कैसे करेंगे, तो सर एक सेक्शन 9B डाला है। मैं चाहूंगा एक आध आदमी मेरे सामने और आ जाए, क्योंकि मुझे लगता है मैं दीवारों से बात करता हूँ, थोड़ी सी आपकी शक्ल देखता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। संदीप जी तो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो आए ना आए, बाकी कोई दो चार और आ जाए तो पता लगता है। चलिए मैंने क्या कहा, अब क्या लिखा है, वेयर, जब सुनते रहना सर, ये लैंग्वेज को सुन के मैं एक एक चीज बताऊंगा। एक सेक्शन 9B डाला है, 9B को टैक्स नहीं लगा रहा, 9B तो डीम्ड ट्रांसफर की बात कर रहा है और डीम्ड इनकम की बात कर रहा है। कहता है वेयर ए स्पेसिफाइड पर्सन रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल एसेट, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एनी स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल एसेट फ्रॉम a specified entity in connection with dissolution or reconstitution of the specified entity. क्या मतलब वो, पहले मैं बता दूं, स्पेसिफाइड पर्सन, पहले ओल्ड लॉ में स्पेसिफाइड पर्सन ही लिखा था, वहां लिखा था पार्टनर और मेंबर ऑफ एओपी, वो बार बार लिखना पड़ता था पार्टनर मेंबर ऑफ एओपी, उन दोनों को मिलाकर उसका नाम रख दिया स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड एंटिटी पहले लिखना पड़ता था फ्रॉम द फर्म और एओपी और बीओआई, इन्होंने कह दिया वो दोनों का मतलब स्पेसिफाइड एंटिटी कर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो तो कन्वीनियंस से नीचे कह दिया स्पेसिफाइड एंटिटी इंक्लूड्स फर्म एंड एओपी बीओआई, स्पेसिफाइड पर्सन इंक्लूड्स पार्टनर एंड मेंबर ऑफ एओपी बीओआई, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। वेयर ए स्पेसिफाइड पर्सन, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज वो पार्टनर है, receives during the previous year
प्रीवियस ईयर में रिसीव कर रहा है, क्या कर रहा है जरा सुनिए, एनी स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल एसेट, ठीक है सर, स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल इन कनेक्शन विद, कहां से रिसीव कर रहा है, फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एंटिटी, इन कनेक्शन विद डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन, दोनों है यहां पर, डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस स्पेसिफाइड एंटिटी। सपोज वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है और एक पार्टनर को एक एसेट काइंड में मिली या स्टॉक इन ट्रेड मिला, ठीक है, कहता है दिस विल बी ट्रीटेड एज, दिस ट्रांजैक्शन विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड टू बी ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी। ये माना जाएगा जैसे स्पेसिफाइड एंटिटी ने इसको ट्रांसफर कर दिया, डीम ट्रांसफर कर दिया, किसको, वो पार्टनर, वो रिसीव कर रहा है लेकिन हम डीम्ड ट्रांसफर मान रहे हैं उसको, किसने दी, एंटिटी ने किसको दिया, पार्टनर को दिया, और वो काइंड में दिया, क्या दिया, एसेट इन काइंड, कैपिटल एसेट या स्टॉक इन, कहता है डीम्ड ट्रांसफर। अगले पैरे में कहता है सच डीम्ड profit or gain from the transfer, deemed transfer of such stock in trade or capital asset shall be deemed to be income chargeable to income tax। वो कहता है जब इसका प्रॉफिट आएगा वो चार्जेबल टू इनकम टैक्स होगा अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन इन केस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द केस ऑफ कैपिटल एसेट एंड चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ the firm, firm के हाथ में टैक्स, in the hands of the firm, and for the purpose of computing business income or capital gain, we will have to take the fair market value of that stock in trade or capital. ये सेक्शन 9 ने यहाँ टैक्स नहीं किया है, यहाँ दो चीजें बताई कि ये डीम्ड ट्रांसफर है और डीम्ड चार्जेबल टू टैक्स है। कहाँ टैक्स होगा, उसने कह दिया बिजनेस हेड में या कैपिटल गेन, उन्हें यहां नहीं कहा कि यहां टैक्स हो। तो लीजिए एक एग्जांपल दे, मैं डिसोल्यूशन दूंगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन बाद में। सुना सर एक फर्म में डिसॉल्व हो गई, जब फर्म डिसॉल्व हुई तो फर्म के एक पार्टनर को एक स्टॉक इन ट्रेड दे दिया गया जिसकी कॉस्ट 2 लाख थी और उसकी मार्केट वैल्यू 2.5 लाख है। पार्टनर को क्या दिया, एक तो इन्वेंट्री दे दी, स्टॉक और दूसरा एक कैपिटल एसेट दे दी, चलो मैं लॉन्ग टर्म ले लेता हूं, लैंड दे दी, 3 साल 2 साल से ज्यादा लैंड दे दी उसको पार्टनर को, और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख है और बुक वैल्यू सिर्फ 10 लाख है। अब जरा ध्यान से सुन, कहता है क्योंकि पार्टनर को एसेट मिली है और स्टॉक इन ट्रेड मिला है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो ये डीम्ड ट्रांसफर है, हमने इसको ट्रांसफर मान लिया, डीम्ड है तो मानना पड़ेगा, ट्रांसफर तो हो गई। अब ये जो प्रॉफिट आएगा और गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ डीम्ड ट्रांसफर ऑफ सच एसेट, जो स्टॉक इन ट्रेड है या कैपिटल एसेट है, वो रिस्पेक्टिव हेड में टैक्स है। सर पहले बिजनेस में जाइए, किसके हाथ में टैक्स होगा, फर्म के हाथ में होगा, पार्टनर के हाथ में नहीं होगा। कौशल जी मैंने 2 लाख का स्टॉक दे दिया था आपको, आप मेरी फर्म में पार्टनर थे, आप रिजॉल्व 2 लाख, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है, 2.5 लाख। तो मैं क्या करूंगा, सेक्शन 28 में जाकर मार्केट वैल्यू 2.5 लाख माइनस कॉस्ट 2 लाख, 50 लाख रुपया बिजनेस इनकम मानी जाएगी फर्म की और फर्म उस पर टैक्स देगी। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया, फर्म उस पर टैक्स देगी। ये क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़, हो गया सर। अब आगे बढ़, फर्म ने एक लैंड भी दी, उसकी कीमत 50 लाख का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, हमने 10 लाख की खरीदी, कहता है ये डीम्ड ट्रांसफर है, इससे इनकम निकालिए, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की इनकम कहां निकाली जाती है, 45(1), 4 नहीं 45(1), चाहिए 9 भी 45(1) से डील कर रहा है। 45(1) में अब क्या करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख, कितने की परचेज करी थी, 10 लाख। पहले उसको इंडेक्स कीजिए क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन निकालते तो इंडेक्स करना पड़ेगा ना, तो कर दीजिए। सपोज वो 10 लाख की इंडेक्सेशन वैल्यू 16 लाख,
तो 50 लाख माइनस 16 लाख 34 लाख टैक्स लगेगा किसको? फर्म एज कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल, और 50 लाख एज बिजनेस इनकम। और जो पार्टनर को वो एसेट मिली उसकी कॉस्ट क्या होगी? जो स्टॉक मिला उसकी कॉस्ट 2.5 लाख फेयर मार्केट वैल्यू, और जो लैंड मिली उसकी कॉस्ट 50 लाख, क्योंकि उस पर टैक्स फर्म ने दे दिया। ये क्लियर हुआ तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये डिसोल्यूशन की बात करो, रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं करो। रिकॉन्स्टिट्यूशन बाद में करो, वहां तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले सिंपल पॉइंट, डिसोल्यूशन में फर्म ने अपने पार्टनर को स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल एसेट दी है। मनी नहीं कहा, स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल एसेट दी है। क्या करा? हम कैपिटल एसेट भी मानेंगे डीम्ड ट्रांसफर है, और हम स्टॉक इन ट्रेड भी मानेंगे डीम्ड ट्रांसफर है। तो टैक्स किसको लगाना है? फर्म। तो फर्म ने 2 लाख की चीज जो मार्केट वैल्यू 2.5 लाख की थी वो पार्टनर को दे दी। तो 2.5 माइनस 2 50 लाख पर फर्म टैक्स देगी, पार्टनर नहीं देगी। और फिर क्या, वो जो आपने मार्केट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लैंड की 50 लाख थी और बुक वैल्यू 10 लाख है, तो आपने अगर बाहर बेची होती, अगर पार्टनर को ना बेची होती तो बाहर बेची होती, तो क्या करते? 45(1) में निकाले तो समझिए बाहर ही बेची है तो पार्टनर को बेची, तो निकाल लीजिए। 10 लाख का इंडेक्सेशन कर दीजिए, सपोज 16 लाख आ गया। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50, 50 माइनस 16 34 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स फर्म को देना है और कुछ नहीं करना। डिसोल्यूशन में और कुछ नहीं करना। डिसोल्यूशन में 45(4) नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिए, 45(4) नहीं लगेगा। इतना क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। अगर यहां पर कोई इश्यू है तो जरूर पूछिए, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताया है। ये सोच लीजिए जो पार्टनर को दे रहे हैं वो फर्म जैसे आउटसाइडर को देती है वैसे पार्टनर को दे रही है, और इसलिए फर्म को टैक्स पड़ गया, स्टॉक के ऊपर भी और कैपिटल गेन भी पड़ गया, कैपिटल एसेट को, क्योंकि आप पार्टनर को अलग समझिए, फर्म से अलग समझिए। ये क्लियर हो गया। 9B रेड विद 28, रेड विद 45(1). ये रेड विद है। 9B में कोई टैक्स नहीं लगना, टैक्स तो बिजनेस चैप्टर में लगना है या कैपिटल गेन में लगना है। लेकिन वहां उसको डीम्ड ट्रांसफर कह दिया, वहां पे कह दिया प्रॉफिट जो टैक्सेबल होगा वो बिजनेस में या कैपिटल गेन में होगा, और वहां ये कह दिया फेयर मार्केट वैल्यू से निकालना है। लेकिन निकाला तो सेक्शन 28 में और 45(1) में। ये क्लियर हो गया सर? कोई इसके ऊपर क्वेश्चन है? नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा तो इतना कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं जरा हाथ से विनती कर रहा हूं कि पहले पूछ लीजिए, इसमें नहीं समझ में आया तो मैं पढ़ूंगा। आ गया या 45(4) नहीं लगना? सर एक मिस्टर वीके जी इनका क्वेश्चन है सर, वीके जी आईफोन। सर आप अनम्यूट कर लीजिए, उन्होंने हैंड रेज करा है सर। आई विल आस्क दैट क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन, नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर कोई एसेट सपोज लैंड ही है जो 10 साल पहले 3 पार्टनर्स थे, तीनों ने अपने नाम पे 1/3 ईच ली थी, उन्होंने एज कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, उनके पर्सनल नाम पे थी, लेकिन हमने उसका कैपिटल का प्लीज यहीं पर रुक जाइए। हाँ जी, हाँ जी। Once it comes to the firm, it belongs to the firm. ओके कोई पर्सन नहीं होती फिर वो, ओके जी, चाहे ओके, रजिस्ट्री कराई ना कराई, वो फर्म की टोटल लैंड। राइट सर, राइट। अभी वो वो- अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो अगर वो अपने पार्टनर्स अपने नाम डाल के ले जाते हैं वापस, नाम तो ये जमाने चलेगा नाम डालना। व्हाट डू यू मीन बाय नाम डालना? वो एक प्रकार से सेल मानी जाएगी पार्टनर। राइट सर, राइट सर, ये बस नाम यही डालने वाली बात नहीं करना मेरे से। अगर तीनों पार्टनर है तो तीनों की सेल मानी जाएगी। ठीक है सर, ठीक। सर, तीनों वो हम कर चुके, वो खत्म हो गया। आज क्या है मैं वो बता। पर वो रिस्पेक्टिव हैंड में टैक्स दे रहे हैं, कैपिटल गेन दे रहे हैं। दे कौन रहा है? फर्म अगर देगी। वो ओके, ठीक है जी, आगे ठीक सर। चलें? हाँ जी सर, हाँ जी, थैंक यू चलिए सर, एक क्वेश्चन आया विनोद मित्तल जी का बठिंडा से। इन विच ईयर द टैक्सेस टू बी पेड व्हेन द In फर्म the year in which it is received by the specified person. Specified. जब पार्टनर को मिली, जब डिसॉल्व हुआ पार्टनर को मिली। अब मेरे पास एक सवाल कोई पूछा तो मैंने 2 मिनट देखा और मैंने बंद कर दिया। सर अगर फेयर मार्केट वैल्यू बुक्स में फर्नीचर की 20,000 है एंड एट दैट प्राइस ओनली एक पार्टनर को वो दे देते उसकी हैं, फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो होगा, नहीं तो कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं।
और वो तो वैसे भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, हाँ, short लॉन्ग term कैसे हो होगा, जाएगा? but then you have to show it into the return of the partnership, showing that there is no capital gain. You have to show it. ऑब्वियसली यार, आप ये भी तो हो सकता है इंडेक्सेशन होकर ज्यादा हो जाए और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम हो, ऐसा भी तो Yes, हो sir. सकता है, Yes, sir. Yes, sir. तो उसमें लॉस आएगा नहीं फर्म को, कैपिटल Thank you, गेन sir. इंक्लूड लॉस। Thank you. हम Thank क्या मना कर रहे हैं? हम नहीं कह रहे, हम सोचिए कि जैसे आपने बाहर बेच दी, वो मेरा पार्टनर नहीं है, मैंने बाहर बेची है, इस तरीके से करो। क्लियर है Yes. सर? Yes, sir. आप उस लोजे से सुनेंगे, पर ये डिसोल्यूशन की बात हो रही है, अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है? लेकिन 40 सर 9B में रिकॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा है, अभी करेंगे। अब एक 45(4) में आया, वो क्या कहता है? Where a specified person received during the previous year from the specified entity any money or capital asset in connection with reconstitution of the firm. यहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन है तो 45(4) लगेगा, लेकिन रिकॉन्स्टिट्यूशन में दोनों सेक्शन लगेंगे, 9B भी और 45(4) भी। अगर सिर्फ डिसोल्यूशन है तो 9B रेड विद 28 एंड 45(1) लगना है, लेकिन अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन है, रिटायरमेंट है या कोई रिटायर नहीं हुआ, सारों ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल लिया, तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। कोई रिटायर हो गया, कुछ नए आ गए, तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। हमें तो ये बताना है जो बाहर जा रहा है उसको क्या मिला। अगर उसको कुछ नहीं मिला तो हम कोई बातें थोड़ी कर रहे, उसको क्या मिला? कहते जी उसको हमने दे दी मनी और कैपिटल एसेट, दो चीजें दी, मनी और कैपिटल एसेट। अच्छा, दे दी, हाँ, तो हम कहेंगे ये ट्रांसफर मानी जाएगी और इसमें टैक्स देगा कौन? फर्म। सर फर्म टैक्स देगी, हालांकि मिल किसको रहा है? पार्टनर। लेकिन कहता कैपिटल गेन निकालना कैसे है, पहले वो तो बताओ, क्योंकि ये तो मैं उसको एसेट दे रहा हूं और आपने 9B तो लगा दिया है, वहां पे टैक्स तो ले रहे हो फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन में। कहता रुकना यार मेरे भाई, मैं बताता हूं। A is equal to B plus C minus D। A का मतलब है कैपिटल, B का मतलब है जितनी मनी मिली, और C का मतलब है जितनी वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू एसेट। उन दोनों को ऐड करके आपकी कैपिटल कितनी थी आउटस्टैंडिंग, वो लेस कर दीजिए, जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल गेन। अब मैं यहीं पर रुक के ना एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं और जरा ध्यान से सुन, प्लीज जरा ध्यान से सुन। 3 पार्टनर है, चलो मैं बनवा लूंगा, कोई गल नहीं, बनूंगा मैं तेरी मां। सर म्यूट कर लो ना। 3 पार्टनर है, A B C, इक्वल रेशियो है। C रिटायर हो रहा है और कौशल जी C को आपने एक लैंड दे दी जिसकी मार्क स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लाख। C को क्या दी? 80 लाख। हालांकि ABC का जो कैपिटल है वो 20 लाख रुपया टोटल है। 20 लाख ही है, A का भी, B का भी, C का भी। अलग अलग भी हो सकता है, क्योंकि मैं सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए मैं भूल ना जाऊं, मैं C का 20 लाख ले रहा हूं कैपिटल और 80 लाख की एसेट उसको दे दी, साथ में मनी भी दे दी 10 लाख। तो टोटल पैसे कितने मिले उसको? 90 लाख। ठीक है सर, 90 लाख मिले। लेकिन रुकिए, पहले भूल जाइए 45(4) है ही नहीं, 45(4) भूल जाइए। 9B में आइए, 9B में रिकॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ जी हाँ है सर, है। 9B में मनी आती है? जी नहीं, वहां स्टॉक आता है या कैपिटल एसेट, तो भूल जाइए मनी पार्ट को। एसेट आई कितने की बोली मैंने? 80 लाख। सर 80 लाख की बोली थी, ठीक है सर। उसकी कॉस्ट क्या थी? सर वो किताबों में कॉस्ट उसकी 20 लाख। ओके कोई बात, 20 थी। अब 9B में लिखा है जब एसेट दोगे तो आपको इंडेक्स करना है, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म है तो मैंने 20 लाख को इंडेक्स करा, तो सपोज कीजिए 40 लाख हो गया। समझ में आ गया सर?
तो कैपिटल गेन कितना हुआ? 80 माइनस 40, 40 लाख रुपया, जो उसको टैक्स कर दिया 45(1) में। एम आई राइट? 45(1) में कर दिया, इसमें स्टॉक नहीं है, तो 45(1) में कितना टैक्स हो गया? 40 लाख। ये ठीक है सर, 40 लाख इंडेक्स करेंगे, हो गया सर। अब रुकिए, अब वहां पर जाइए 45(4), आपको क्या मिला? मनी 10 लाख, एसेट 80 लाख, 90 लाख। आपकी कैपिटल कितनी है? मैंने बोला था 20, कहता रुको 20 नहीं है। कहते क्यों नहीं है 20? कहते रुको ना मेरे भाई, जो कैपिटल गेन हुआ है वो भी तो ऐड करना है इसमें कैपिटल में, जो आपने ऑलरेडी लगा दिया है। लेकिन प्लीज नोट, कैपिटल गेन तो टैक्स के लिए है। और सपोज करो उस 40 लाख पे कौशल जी आपने सरचार्ज छोड़कर 8 लाख टैक्स दिया है। 20% 8 होता है, 8 लाख। 40 लाख और 8 लाख, ये याद रखना, कैपिटल गेन 40 और वो 8 लाख टैक्स। लेकिन कौशल जी एक्चुअल इनकम कितनी हुई है? 40 नहीं हुई है। एक्चुअल इनकम में इंडेक्सेशन थोड़ी देखा जाता है, जो कमर्शियल सेंस में आप प्रॉफिट बनाएंगे, वो तो होगा 80 माइनस 20 बुक वैल्यू। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो 60 लाख, तो 60 लाख प्रॉफिट हुआ, बुक प्रॉफिट, उसको छोड़ दीजिए कैपिटल गेन, 60 हुआ ना, उस 60 में से कैपिटल टैक्स कितना दे दिया? 8 लाख। अब ये 52 लाख अब तीनों में बांट देंगे और फिर कैपिटल निकालेंगे। जब 52 बचा तो सी को कितना मिला? 17,33,000। एम आई राइट? तो सी का कैपिटल कितना हो गया? 20 लाख नहीं रहा, 37,33,000 रुपया। अब 90 में से 37,333 लेस करेंगे और फर्म को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 52,667। मर गए। समझ में आया कि नहीं आया वो तो आप बताएंगे। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जरा ध्यान से सुनना। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो एक और मुसीबत है जिसको मैंने अभी बोला ही नहीं। ध्यान से सुनना। हमने अपने पार्टनर सी जो रिटायर हो रहा था, उसकी कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट 20 लाख थी और उसका 1/3 शेयर था। ठीक है सर, 20 लाख थी, 1/3 शेयर था। हमने उसको 10 लाख रुपया कैश दे दिया और 80 लाख की एसेट दे दी, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लाख थी। तो कैपिटल गेन कितना निकलना है? 45(4). अभी भूल जाओ, अभी भूल जाओ, पहले 9B में जाओ। 9B में मनी को तो देख लेंगे। क्या देखना है? कैपिटल गेन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लाख और इंडेक्स कॉस्ट क्या हो? मैंने कहा वो हमने 20 लाख की खरीदी थी और इंडेक्स कॉस्ट 40 हो गई। तो कौशल जी कैपिटल गेन हुआ 45(1) में, 4 में नहीं, 1 में। 80 माइनस 40, 40 लाख। ये ठीक है सर, 40 लाख। और 40 लाख पे टैक्स मैंने गिन लिया, सरचार्ज हटा दो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, 8 लाख। 40 पे 8 लाख टैक्स दे दिया है। लेकिन जब आप कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे तो कैपिटल गेन थोड़ी क्रेडिट होता है, वो तो प्रॉफिट कितना आया ऑन द सेल ऑफ दैट एसेट, वो प्रॉफिट है 80 माइनस 20। एम आई राइट सर? 80 माइनस 20, 60 लाख रुपया। उसमें से टैक्स निकाल दो, 8 लाख रुपया। 52 लाख इनकम प्रॉफिट आया आफ्टर टैक्स, उसको तीनों आवियों में बांट दो तो सी को मिला 1/3, 17,33,333। ठीक है सर। अब सी का कैपिटल कितना बढ़ गया? ऑलरेडी 20 था, 17 और जोड़ दीजिए, 37,33,333। लेकिन हमने दिया कितना उसको? 10 लाख कैश, 80 लाख की एसेट, 90 लाख माइनस 33,333। इसके ऊपर फर्म को टैक्स देना पड़ेगा 52,66,667। आप कहोगे कौशल जी 2 टैक्स हो गए। एक तो 45(1) में हमने टैक्स दिया 40 लाख के ऊपर 8 लाख रुपया, और ये टैक्स दे रही है फर्म कितने के ऊपर? 66 लाख कितने के ऊपर? वो भी टैक्स लग गया। ये तो डबल मार पड़ गई। कहता है इंतजार करो ना, मार डबल पड़ी है ना। लेकिन जो टैक्स दिया है 45(4) में, जो आपको 45(4) में टैक्स लगा है,
उसका टैक्स का जितना भी कैपिटल एसेट एट्रीब्यूट हो रही है, वो जो अमाउंट है वो आप एलोकेट कर दो बाकी एसेट में फ्यूचर की, और उसकी कॉस्ट मांगो। आगे जब उसकी प्रॉफिट निकालोगे, कभी भी बेचोगे, तो उतना अमाउंट जो ऑलरेडी दे चुके हो वो फ्यूचर की कॉस्ट में एडजस्ट हो जाए। महा मुश्किल काम। फॉर्म 5C भरो, उसमें लिखो, सर पागल हो जाएंगे। नोटिफिकेशन आया है और उसमें रूल 8A आया, रूल 8AA आया, और साथ में एक सर्कुलर आया है 14/2021। जब तक कि एक ड्राइंग बोर्ड पे अच्छी तरह नहीं समझाऊंगा, समझ आ ही नहीं सकता। लेकिन मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से यहां तक तो कह दिया कि 2 कैपिटल गेन लगेंगे, लेकिन उस जो कैपिटल गेन आपने 45(4) में दिया, उसका क्या होगा? उसका वही होगा कि फ्यूचर एसेट में उसको हम एडजस्ट कर देंगे ताकि आपको दोबारा ना देना पड़े। उसकी इनकम, उसकी कीमत बढ़ा देंगे जो 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 आपके पास एग्जिस्टिंग एसेट है। लेकिन उसको एलोकेट कैसे करेंगे, ना ही पूछो तो अच्छा है। वो एलोकेट करते हुए कहता है उन एसेट को भी फेयर मार्केट वैल्यू निकालो, उन सभी एसेट की जो दी नहीं है, और फिर प्रोपोर्शनेटली करो। और मेरे भाई, मेरे को रहम कर। वो कहता है रहम तेरे पे करना ही नहीं है, तेरे को तो पागल बनाना ही बनाना है, कर ले जो तूने करना। तो ये वाला उन्होंने कहा है 48(3) में वो कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी, और वो फ्यूचर जो आपकी एसेट है उसमें वो कॉस्ट एलोकेट करके आपको खर्चा मिल जाएगा। समझ में आया सर? अब वो फ्यूचर वाला भी छोड़ दो, बाकी समझ में आया कि नहीं? तो फ्यूचर वाला समझाने के लिए तो ड्राइंग बोर्ड के बगैर या प्रेजेंटेशन के, और वो आपने फ्यूचर वाला जो है ना सर, वो सर्कुलर में एग्जाम्पल नंबर 1 अगर पढ़ेंगे तो कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। कम से कम 10 बार पढ़ेंगे तो 50% समझ में आ जाएगा, 100% तो आएगा ही। फिर एग्जाम्पल 2 पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे, फिर कहेंगे ये क्या फर्क है, दोनों में तो सेम आ रहा है। लेकिन एग्जाम्पल 2 में उन्होंने कहा बाहर वाले को बेचे तो क्या होगा और इधर पार्टनर को देंगे तो क्या, बाकी आंसर सेम। तो लोग, मैंने तो एक रात लगा दी एग्जाम्पल 1 और 2 को समझने, हर बार वो मिस हो जाता। बाद में समझ आई एक पार्टनर को दिया है, दूसरा बाहर बेचा है, इतना ही फर्क। बाकी वो एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये पढ़ना, फिर मेरे से डिस्कस करना, नहीं तो ये आसान काम नहीं। तो लीजिए अब सवाल पूछिए। जी सर, अश्विन जी का क्वेश्चन है, रिटायर पार्टनर कैन टेक द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड लैंड वैल्यू ₹34 lakhs इन हिज बुक्स। कैन ही टेक? यस, रिटायर्ड पार्टनर की कॉस्ट वही हो गई। रिटायर्ड पार्टनर की कॉस्ट हुई जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है, वही रिटायर्ड पार्टनर की कॉस्ट। वो तो चला गया ना यहाँ से, वो तो उसकी कॉस्ट हो गई। पर्सनल जो करे वो उसकी मर्जी है, जब बेचेगा तो उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा उस कॉस्ट का। जी सर, विनोद मित्तल जी का क्वेश्चन है, इन केस देयर आर 2 पार्टनर एंड 1 इज रिटायर्ड, वेदर टैक्स इज पेएबल? इट इज डिसॉल्व्ड द मोमेंट वन रिटायर्स, द फर्म इज डिसॉल्व्ड। तो उसमें 45(4) नहीं लगेगा, ओनली 9B वो लगेगा। ये 2 पार्टनर और एक आदमी रिटायर हो गए तो पार्टनरशिप फर्म कहां रही सर? वो तो डिसोल्यूशन हो गई। अगर एक पार्टनर डेथ हो गई और 2 ही पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, तो भी डिसोल्यूशन मानी जाती है। वो रिटायरमेंट नहीं है, डिसोल्यूशन है। अगर वो डेथ हो गई तो डिसोल्यूशन है। अगर 2 पार्टनर में एक चला गया, पहले एडमिट करिए फिर रिटायर हो तो बात अलग। पहले एडमिट करिए फिर रिटायर हो, फिर तो बात अलग हो गई। फिर तो दोनों सेक्शन लगेंगे, 9B read with 28 and 45(1) and also 45(4). मोहित सोई जी का क्वेश्चन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सर व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ लैंड इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर? बोल दिया, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ये तो 3 बार बोला, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सर मिस्टर काजला वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। मिस्टर राकेश काजला सर हमारे सीनियर मेंबर हैं पटियाला से। काजला जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। नमस्कार आहूजा जी। नमस्कार। हाँ सर, जैसे अभी आपने कहा भी जो वैल्यू आएगी, जो बैलेंस एसेट्स रह जाएंगी उसमें अपोर्शन कर देंगे हम। हाँ जी सर। हाँ सर, जो एसेट्स हैं अगर उनके पास, फर्म के पास स्टॉक के अलावा कोई और कैपिटल एसेट नहीं रहती खास, तो सर उसका फिर कैसे प्रोपोर्शनेट करेंगे सर? आप कह रहे हैं सारी एसेट बांट दी तो फर्म में क्या रह गया?
जी सर, स्टॉक या उसके अलावा कुछ तो रहा था, स्टॉक में तो करना ही नहीं है, एलोकेट तो एसेट में करना है, कैपिटल एसेट में। हाँ सर, सर यही क्वेरी थी। फिर उसके अलावा तो फिर कुछ नहीं, उसको एसेट्स को किस में बढ़ाएंगे हम, ये मेरी क्वेरी थी। सर तो फिर वो करंट एसेट में ही लेस कर दे। ओके वो सर, कॉस्ट करंट एसेट से ही लेस हो जाएगी, क्योंकि और कोई एसेट नहीं है ना, तो आपकी ठीक जो है जी। करंट दिया ना उसी में कॉस्ट मान ली जाएगी, वो कैपिटल गेन। 2 बार टैक्स थोड़ी ले लेंगे हम, कहीं तो दो। तो क्या करेंगे, है। वो जो कैपिटल गेन आपने दिया हुआ है ना, और ये जो कैपिटल गेन लगा, जो डिफरेंस, वो करंट में कॉस्ट मान ली जाएगी, उस ठीक है एसेट की कॉस्ट मान ली जाएगी फॉर पर्पस ऑफ 45(4). ये ओनली जी फॉर सर। पर्पस ऑफ 45(4), नॉट फॉर 50(b). ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन आया है मिस्टर के सिंगला जी, हमारे सीनियर मेंबर पटियाला से। He says if any partner expires and his legal heirs are paid any money on revaluation of capital assets or stock in trade, in that case is there any tax liability in the hands पर of? क्यों नहीं है, ये गलत सवाल है। ये मेरे को उन्होंने मेरे को भेजा भी था। अप टू द डेट ऑफ डेथ डिजीज को टैक्स लगता है। अगर जब मर गया तो अप टू द डेट ऑफ डेथ तो सारी इनकम डिजीज की है, लीगल एयर की थोड़ी है। लीगल एयर को दी जाती है तो डिजीज की। अरे 2 रिटर्न जाती है, अप टू द डेट ऑफ डेथ अलग होती है और बाकी लीगल एयर की रिटर्न अलग होती है। तो डिजीज का है वो पैसा, उसमें क्या मतलब है देना? वो मरा हुआ थोड़ी आके लेके जाएगा, देना तो लीगल एयर को ही पड़ेगा। लेकिन वो इनकम किसकी है? डिजीज की है सर। डेथ तक की डिजीज तक कैपिटल गेन तो फर्म ने देना है, लेकिन वो एसेट डिजीज को मिल रही है, ना कि लीगल एयर। लीगल एयर ने थोड़ी टैक्स देना है, फर्म ने देना है। टैक्स फर्म ने देना है मेरे भाई, लीगल एयर थोड़ी को दे रहा है। रिसिपिएंट तो नहीं दे रहा, इवन पार्टनर जो रिटायर हो रहा है वो भी नहीं दे रहा, वो तो फर्म दे रही है दोनों केस में। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। सर दूसरा क्वेश्चन उन्हीं का है, वेयर अ फर्म इज डिसॉल्व्ड एंड वन ऑफ द पार्टनर्स टेक्स ओवर द बिजनेस, आई फील बात एक ही है, वो 9 भी लगेगा, 45(4) नहीं लगेगा। सर ही सेज आई थिंक इट विल बी अ केस ऑफ सक्सेशन अंडर सेक्शन 170। उससे क्या फर्क पड़ता है? सक्सेशन है तो जी। सक्सेशन इज नॉट ए सिंग। सक्सेशन तो क्या हो गया, तो 2 टैक्स लगेंगे ना, एक अप टू द डेट वो रिटर्न होगी, एक उसके बाद की रिटर्न होगी। सर 2 रिटर्न है ना सक्सेशन में, तो ये लिखा है टिल द डेट ऑफ डेथ 1 रिटर्न, आफ्टर द डेट ऑफ डेथ 2nd रिटर्न। अप टू द डेट ऑफ डेथ में जो उसको मिला वो टैक्स लगेगा, जो उस डिजीज पार्टनर को मिला। हम इसको थोड़ी कह रहे हैं डिजीज पार्टनर को क्या मिला। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा अब। दिस हैज कम फ्रॉम अशोक सिंगला जी। For a single transaction that is distributing the capital assets to partner due to reconstitution of a firm, 2 provisions on the same सर बता दूं, बड़ा सिंपल बता दूं, अगर किसी पार्टनर को कुछ दिया नहीं है, सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन किया है, तो कुछ भी नहीं होगा। अरे रिसीव करोगे तभी तो होगा भाई। कोई पार्टनर रिसीव करेगा क्या? स्टॉक, क्या कैपिटल एसेट, क्या मनी है? सिर्फ कैपिटल रेशियो चेंज करी, लिया दिया कुछ नहीं, तो फिर किस बात का टैक्स यार? फिर किस बात का टैक्स? जब पार्टनर ने रिसीव ही कुछ नहीं किया, शेयर प्रॉफिट बदले हैं, रिसीव कुछ नहीं किया। और एक और बात, अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है, जितना कैपिटल है उतना ही दिया जा रहा है, तो फिर भी कुछ नहीं होना। उसको जितना कैपिटल है उतना ही दे दो, फिर भी कुछ नहीं होना। बात समझ में आ रही है? ये तो तब आएगी जब आपने उसको कैपिटल के बदले कोई एसेट दे दी, और एसेट की मार्केट वैल्यू निकाल और एसेट के बदले मनी दे दी, और उसका कैपिटल 2 करोड़ रुपया है और 2 करोड़ को दे दिया। किस बात का टैक्स यार? कोई कैपिटल गेन थोड़ी हुआ है, 2 करोड़ कैश दे दिया, खत्म हो गई, धन्यवाद। हमने कोई दिया थोड़ी है, बेचा थोड़ी है। जब तक एसेट नहीं आएगी, जब तक स्टॉक इन ट्रेड नहीं दिया जाएगा, 25(4) वो 9 भी नहीं लगेगा। और जब आप मनी में आएंगे 45(4) में जितनी मनी है उतना ही कैपिटल है, तो कैपिटल गेन है ही नहीं। समझ आ रहा है सर? कैपिटल गेन है ही नहीं। तो आप समझदारी से काम करें तो कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं। सर विनोद मित्तल जी का क्वेश्चन है कि आर दीज प्रोविजंस एप्लीकेबल ऑन एलएलपी आल्सो? एलएलपी और फर्म के क्या फर्क है सर? एक ही चीज है, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी, कोई चीज का फर्क नहीं है। फर्म और एलएलपी एक ही चीज है, फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स,
not for other purpose. For purpose of income tax, a firm includes LLP. ये तो Sir- सेक्शन 23 में लिखा हुआ है, a firm includes LLP. सर हरविंदर सिंह जी ने कहा है कि कैन यू प्लीज रिपीट द एग्जांपल आफ्टर 37 लाख कैलकुलेशन 20 + 17. सर 20 लाख तो उसका कैपिटल था, 17 लाख रुपया कैपिटल गेन हो गया, 17 लाख रुपया उसका बिजनेस इनकम हो गया। कैपिटल गेन तो 40 था, लेकिन वो हमने कहा उसका इंडेक्स छोड़ दो, इंडेक्स छोड़े बगैर 17,33,000 हो गया, तो टोटल उसकी कैपिटल 37 लाख आउटस्टैंडिंग है। अगर आप 37,33,333 दे दोगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे, धन्यवाद, कोई कैपिटल गेन है ही नहीं 45 को। लेकिन 37,33,333 से ज्यादा दोगे तो आइए 45 भी अट्रैक्टिव, और जितना ज्यादा दिया वो कैपिटल गेन आप फ्यूचर एसेट में कॉस्ट मान लेना, ये कहा। अगर आपने 20 लाख प्लस 17,33,033 कर दिया, वो 9 भी तो लग गया, वो कैपिटल गेन तो हो गया जो हमने निकाला 40 लाख, जिसपे टैक्स दिया 8 लाख, छोड़ दो। लेकिन यहाँ 45 नहीं लगेगा अगर उसका जितना भी कैपिटल आउटस्टैंडिंग है सिर्फ उतना ही दिया तो, उतना ही दिया तो, उससे ज्यादा देंगे तो लगाइए टैक्स। सर मोहित सोई जी पूछ रहे हैं वेदर सेक्शन 56(2)(10 एप्लीकेबल ऑन द ट्रांसफर ऑफ लैंड टू पार्टनर. सर क्यों होगा, फेयर मार्केट वैल्यू पे तो दे रहा है, फर्म तो फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स दे रही है, तो 56(2)(10 कहां से आ जाएगा? फर्म किस वैल्यू पे दे रही है टैक्स? फेयर मार्केट वैल्यू पे, तो 56(2)(10 आएगा ही, तो उसकी तो कॉस्ट मानी जा रही है फेयर मार्केट वैल्यू, जी नहीं जी. So sir, we are done with the questions. If anybody has any other question, please raise your hand so that I can put him on the screen. Otherwise, we will proceed with the conclusion of this program. I think sir ने भी आगे जाना है, तो we'll complete the formalities. Now I'll request Shri Ram Narayan Yadav ji to please give the concluding remarks. He is the president of Haryana Tax Bar. Shri Ram Narayan Yadav ji, I'm requesting you to unmute yourself, please. Yeah, please go ahead, sir. सर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपके जो डेलिब्रेशन से इतना प्रभावित हुआ हूं कि मुझे एक हिंदी का जो है दोहा याद आ रहा है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास बाकी सब खद्दोत सम जहां तहां करत प्रकाश। सर मतलब ही समझा दीजिए। सर इनकम टैक्स से तो इजी होगा फिर भी। वो बात ठीक है सर, जो ये 45 बोल आपने बोला सर, कंप्लीट कर ले रहे सर यादव जी कंप्लीट कर रहे थे अभी। हाँ जी, मैं जनाब ये कहना चाहूंगा कि जैसे हिंदी के काव्य जगत में बहुत से कवि हुए, लेकिन यहाँ पर 3 कवियों को मतलब जो है माना गया कि सूरदास जी सूर्य के समान, और महात्मा तुलसीदास जिन्होंने मानस लिखी उनको चंद्रमा की शशि के समान उपाधि दी, केशवदास जी उड़गन, और बाकी सब खद्दोतसम जैसे कि जुगनू होते हैं, वो मतलब समय के अनुसार अपना प्रकाश देते हैं। मैं सभी बुद्धिजीवियों के बीच में बैठा हूं, वो इस चीज को महसूस ना करें। मैं डॉक्टर साहब की प्रशंसा के और टैक्स गुरु होने के नाते मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे सूरदास को सूर्य की उपाधि मिली, सूर्य की, तो सूर्य के सामने प्रकाश दिखाना और कंक्लूजन करना, उनको रिमार्क्स देना, ये कहीं भी हमारे लिए शोभाप्रद नहीं है। सर आप इस टैक्स जगत के टैक्स गुरु हैं, और आपने जिस सरल भाषा में हमारे को जो है ना ज्ञान उपार्जन किया, जो आपने सरल शुद्ध भाषा में हमें समझाया, एक एक उदाहरण के तौर पे, एक एक सेक्शन के एक एक मतलब जो है कैलकुलेशन के तौर पे, जो आपने टीडीएस टीसीएस प्रोविजंस और इवन जो 45(4) एंड द अदर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स आपने जिस तरह से समझाया, मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि शायद फिर से मैंने वो 4th 5वीं क्लास तो ज्वाइन नहीं कर ली अपनी, कि आज मैं उन्हीं गुरुजी के सामने तो नहीं बैठा हूं कि जो कान पकड़ के समझा रही थी, समझ में आया कि नहीं आया, इसके बाद जब चलूंगा जब तेरे पिछली समझ में आ रही है। रियली इट इज अप्रिशिएबल
and I do not like to repeat the all provisions which you have already explained with your wide knowledge and the experience. With this, all the participants who have joined, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and other states, all the tax bar association presidents, especially one of the national level, this NATP, National Level Tax Practitioners Association, with all the DTBAs, District Tax Bar Association of the Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and other states. I like to thanks each and every participant, especially to the organizer and our, you can say the moderate, Sri Sandeep Goyal ji, and the Punjab Tax Bar Association General Secretary Sri Kausal Sahab, President Sri Gupta ji, and again my, you can say the all the best wishes to the Amrit Kalash, our Dr. Girish Ahuja ji. हम ये कहते हैं कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपको 50-100 साल और जिवाए, ताकि हम भी ये सुनते रहें तो हमारी उम्र भी बढ़ जाएगी और हम आपके सहारे इसमें तर जाएंगे, इस भवसागर में, टैक्स के भवसागर में हम आपका साथ लेकर के तर जाएंगे। विद दिस थैंक्स सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद यादव जी। आई थिंक कौशल जी कुछ सवाल पूछना चाहते थे, कुछ डिस्कशन करना चाहते थे। प्लीज प्लीज। सवाल नहीं पूछना चाहता था मैं, गुरुजी से ये कहना चाहता था कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन एक्ट में डलवाते क्यों हो? सर बात ये है, इसके अगेंस्ट था मैं बहुत लड़ाई करी, लेकिन वो ये कहते हैं कि आपने पैसे ज्यादा क्यों दे रहे हो उनको, जब आपने उतने ही दो ना जितने उनके बनते हैं। आप ज्यादा दे रहे हो तो डबल गेम खेल रहे हो, वहां तो दे दिया आपने ठीक है, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा दे रहे हो, तो पैसे ज्यादा दे रहे हो कैपिटल गेन के, तो आपको टैक्स हमें दे दो, बाद में उसका बेनिफिट ले लेना। ये उन्होंने सोचा, लोग प्लानिंग करते हैं कि पैसे ज्यादा दे दिया रिटायरमेंट वाले को और टैक्स नहीं दिया, तो कह रहे हमें टैक्स दे दो, बाद में जब इसका जो टैक्स दिया है उसका क्रेडिट हम दे देंगे जब आगे फ्यूचर एसेट बेचेंगे। तो मैं क्या करता सर, हमारे हाथ में कहना है, लेकिन आपको पता है कि आजकल चलती नहीं, समझ गए ना। समझने वाला को समझाने वाला हो तो समझाऊं, समझने वाला ही कोई नहीं, क्या कर सकते। पहले वो समझ जाते थे, हमारी बात मान लेते थे और आगे कह देते थे। अब पॉइंट ये है, राज उनका है, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख देते हैं और बाद में परेशानी हम लोगों को। आशीष बिल्ला जी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, काइंडली अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आशीष बिल्ला जी, आशीष बिल्ला जी प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट टैक्स बार एसोसिएशन फरीदकोट के। आशीष जी काइंडली अनम्यूट कर लीजिए, यू हैव टू गिव दी वोट ऑफ थैंक्स। आई थिंक गिरीश सर को फिर आगे जाना है। चलिए, आई थिंक ही इज प्रॉब्ली नॉट अवेलेबल हियर। सो सर हमारी तरफ से हो गया है। कौशल जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर, एक बार फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स कर दीजिए ताकि हम प्रोग्राम को कंक्लूड करें सर। आई एम रियली थैंकफुल टू टैक्स गुरु Girish Ahuja ji, who has spared his valuable time out of his busy schedule. He has very elaborately explained all the provision of TDS and Section 44, 4 of the Act, 45, 4 of the Act. I also thanks all the participants as well as the office bearer of the various associations who are participating in this webinar. I wholeheartedly thanks the moderators, the Golji, who is always sparing his time for this webinar. Friends, next webinar will be on GST topic. I always request everybody to kindly suggest any topic which will be in the interest of majority of the professional. So kindly WhatsApp me, mail me any topic which you want to discuss in the coming session. We are holding one time on direct taxes and one time on indirect taxes on an alternative Sunday. So with this, I once again
Thanks to tax guru Shri Girish Ujja ji. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Take care. Stay healthy. बहुत बहुत धन्यवाद सर, डॉक्टर साहब आपके चरण स्पर्श सर, और सारी बार एसोसिएशंस को बहुत बहुत धन्यवाद आज का प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। सबसे रिक्वेस्ट है कि बी आर कौशल जी की ज्यादा से ज्यादा उनके साथ सपोर्ट करें ताकि हम अच्छे से अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। और सर हम आपको बहुत जल्दी फिर से इनवाइट करेंगे ताकि हम आपके दर्शन कर सकें सर, और हमारे में थोड़ा सा जो भी ज्ञान अर्जित कर सकें आपसे सर। थैंक यू सो मच। With this, I am meeting for today. We will be seeing you 1 week after the next Sunday. Thank you so much.